अनंत उपकारी चरम शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी आदि अनंत तीर्थंकरों की चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। परम उपकारी गुरुवर्यों की चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। आज अपनी ये छोटी विधि आई है। वो बोलती थी कि आप अगर हिंदी में बोलोगे तो हम थोड़ा समझेंगे। सही बात है कि इतना छोटा बच्चा जब सुनने को आए तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी जो समझ में आए वैसे कुछ बोले। विधि बेटा, तुम ये जैन शासन का भावी हो, हम लोग तो सब रिटायर होने वाले हैं, आप बच्चों को ही ये सब संभालना है। धन्यवाद जी। गई काले आपे जे कीधुं के मीठ आ भावमां के भाव भावमां ना खाईए तो आपणने ए जग्याए जन्म ना मळे। ए साचुं हूँ कहूँ कि हूँ कंदमूळना पण आ भावमां ने भाव भावमां पचकाण लऊं तो शुं कंदमूळ खाता होय ए त्यां घड़ी आपणे जन्म ना मळे। आम करवाथी आपणे आपणुं क्षेत्र नक्की करी काढीए छे कि चलो अहींया नथी जन्म लेवो, अहींया तमे ना आपता मने। ચોક્કસ ભાઈ, કારણ કે વાત એમ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું પુણ્ય એને કઈ દિશામાં લઈ જાય એ કોણ નક્કી કરે છે? આજે તમારા આપણા ભાવથી જ નહીં, આપણા ભાવથી જ આપણને ગતિ મળે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને માલિકી છે પુણ્યની, તો પૂર્વના લેણદેણ ચૂકવવા માટે જે પૂર્વના કર્મો છે એના આધારે થોડા જે બાકીના કર્મ છે એ ચૂકવવા પૂરતું થાય. પણ અંદરનો ભાવ છે ને એ તરત જ, જેમ કે તમારું દેણું હોય તો તમે દેણું ચૂકવી દો, પછી તમારી મૂડી જે વધે એમાંથી તો તમારે જે કરવું હોય એ કરી શકો ને. તમારી માથે દેણું છે તો કમાયા પછી તમારે થોડોક વખત એ દેણું ચૂકવવામાં જ્યાં બી બાકી હોય ત્યાં ચૂકવવું પડે. પણ જ્યારે તમે તમારી મૂડીના માલિક છો પછી તો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે એ પૈસાને તમે વાપરો. એમ તમારું પુણ્ય પણ તમે જે પુણ્ય તો હોય જ, આપણે જે પુણ્ય છીએ જ આપણને પુણ્ય કે પાપ જ લઈ જવાના ને. તો આપણે પાપ તરફથી પાછા વળીએ છીએ. આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે હવે મારે પાપ નથી કરવા, અને છતાં પણ જે પાપ થાય છે, આપણે ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ, આપણા જીવનથી પાપ તો થાય છે ને. તેમાં જ્ઞાનીએ બતાવ્યું ને, આપણે પહેલાં કીધું કે જ્યારે અજ્ઞાન જીવ કર્મ બાંધે છે ત્યારે એ કર્મો અનંતાનુબંધીના થાય છે, અને જ્યારે સમજણ પછી કર્મ બંધાય છે તો એની ઇન્ટેન્સિટી તૂટી જાય છે, એની તાકાત ઓછી થઈ જાય છે. આજે એક વખત આપણે નક્કી કર્યું છે, જેમ મેં દાખલો આપ્યો કે આપણને ડાયાબિટીસ હોય અને પછી આપણે મીઠાઈ ખાઈ, અને ખબર નહોતી અને મીઠાઈ ખાતા હતા, તો અંદરમાં ડાયાબિટીસ જાણ્યા પછી ભલે મીઠાઈને ખાતા રોકી ન શકીએ આપણને, પણ અંદરમાં ખટકો તો લાગે ને. પહેલાં જે તાકાતથી ખાતા હતા, જે ભાવથી ખાતા હતા, એમાં જરાક ભેદ પડી ગયો. અને જ્યારે એમાં સમજાઈ ગયું કે હવે તો આ મીઠાઈ મને હાનિકારક છે, તો એ વખતે તમે છોડી શકો છો. એમ પહેલાં जब मन में ये पक्का होता है कि मुझे ऐसा कुछ जन्म करना ही नहीं है कि जहाँ से मेरे पाप बनते रहे, तो उस वक्त आपके भाव, उसको बोलते हैं अनुपूर्वी. अनुपूर्वी माने उसको चलने वाली, पीछे चलने वाली. आपके साथ कर्म की जो भी प्रकृतियाँ बनती है वो हर समय बंधी जाती है. अच्छे बुरे कर्म आते हैं. तो जैसे आपके घर में બેનો તમારી પાસે મસાલાનો ડબ્બો હોય ને, તેમાં હળદર, મીઠું, ધાણા જીરું, મરચું બધું હોય, બરાબર. હવે જે દિવસે તમે ખાલી ખીર બનાવી એ દિવસે બાકીનો સામાન પડ્યો રહ્યો. આજે તમે ઘરમાં 10 વસ્તુ છે પણ એક ટિફિન ભર્યું, તેમાં જેટલી જ વસ્તુ મોકલવી હતી એટલી જ ગઈ. ઘરમાં તો કેટલી બધી હતી. તો તમારી મરજી પ્રમાણે, ઘરમાં સામગ્રી ગમે એટલી હતી પણ તમે એનો ઉપયોગ તો તમારી મરજી પ્રમાણે કર્યો ને. એમ જ્યારે આપણી ગતિ થાય છે, નવું આયુષ્ય બંધાય છે, ત્યારે એને અનુરૂપ પ્રકૃતિઓ એમાં જોડાઈ જાય છે. અત્યારે તમારી સત્તામાં ઉડવાની શક્તિ પડી છે. ધારો કે આપણી પાસે આપણે ઉડી શકીએ એવા કર્મોના બંધ શક્તિ રૂપે કે અશક્તિ રૂપે આપણે બાંધ્યા છે, અને આપણે મનુષ્ય થયા તો એ શક્તિ સત્તામાં પડી રહી. અને અહીંથી જેવા માખી બન્યા તો આવતા ભાવમાં આપણે ઉડવા માંડશું. તો એ શક્તિ ક્યાંથી આવી? કર્મ પ્રકૃતિઓ સત્તામાં પડી હતી પણ અનુપૂર્વી કહેવાય, એટલે એ તરત જ એની સાથે જોડાઈ જાય. એ મારો ને તમારો ભાવ એ સર્વ સંચાલનનું કેન્દ્ર છે.
આ બધું સંચાલન થાય છે ને એ આપણો ભાવ જ કરે છે. આના પહેલાં પણ આપણે વાત કરી હતી કે એક મુનિને એટલો ભાવ થયો કે મારે આ ફળ, આ બોર પારણું કરું ત્યાર પછી ખાવું છે, અને એ વખતે એનો એ ભાવ બરાબર મજબૂત હતો, એટલે એ સત્તામાં પડ્યો. અને જેવું આયુષ્ય પૂરું થયું એટલે કર્મ સત્તાને નક્કી કરવું પડે કે હવે આને ક્યાં ગતિ આપવી. તો કે એનો ભાવ છે કે આ બોર ખાવાનો, તો એને બોર ખાવા માટે શું કરવું? તો દેવ ન થવાય, કારણ કે દેવ થાય તો એ ખાઈ ન શકે. મનુષ્ય થાય તો પણ 9 મહિના નીકળી જાય, તો હવે શું કરવું? તો એની બોર ખાવાની ઈચ્છા એટલી બધી બળવાન હતી કે સીધો ઈયળ થઈ ગયો અને બોરમાં જન્મ્યો, અને પહેલી જ પડે એણે બોર ખાધું. એટલે ગતિ તમારી બાંધો તમે, એ વખતે એની અંદરની ભાવના કઈ છે, એ ભાવના જ ગતિ તરફ આપણને દોરી જાય. એટલે આપણે જ્યારે કોઈ પણ જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ બને છે એ વખતે પાપ તરફનો અભાવ, એનામાં સંવેગ અને નિર્વેદ જાગે. જુઓ, સમ્યક દ્રષ્ટિના લક્ષણમાં શું કીધું છે? માત્ર સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને શ્રદ્ધા, જો 5 જ લક્ષણ બતાવ્યા છે કે કોઈ પણ જીવના હૃદયમાં પૂર્ણ રીતે સમતા જાગવા માંડે. હજી પૂર્ણતા તો વિતરાગતામાં આવે, પણ વ્યવહારિક જગતની સંવેગ, અને એકવાર તો મોક્ષે જવું જ છે. મોક્ષ શું છે, મોક્ષ ક્યાં છે, કેવડો છે, એ મને કાંઈ ખબર નથી, પણ મારા પોતાના બંધનોમાંથી મારે છૂટવું છે, એ સંવેગ. નિર્વેદ, આ સંસાર ગમે તેટલો સુંદર દેખાય, ગમે એટલો પ્રિય લાગે, મનગમતો લાગે, અને એની અંદરમાં મને ઘણીવાર મજા પણ આવી જાય, પણ આ સંસાર રાખવા જેવો નથી, આ બંધન જ છે, મારે એમાંથી છૂટવું છે, એનું નામ નિર્વેદ. અનુકંપા, અને મારું જીવન ચલાવવા માટે મારે આટલા અનંતા જીવોની હત્યા કર્યા વિના મારું જીવન જ ચાલે નહીં. આપણું જીવન ચાલે તો મારે આ જીવન જીવવા માટે જો આટલા બધા જીવોની હત્યા કાયમ કરવી જ પડે તો આવા જીવનનો મતલબ શું છે? આ જીવન મને મળ્યું છે એના વડે તો હું કર્મ કાપી શકું એમ છું. એને બદલે જો હું માત્ર કર્મ બાંધવામાં જીવન વિતાવું તો મારે હવે પછી જીવન નથી જોઈતા. કર્મ કાપવાના સાધન તરીકે ભલે રહ્યું, પણ આપણે બધા જો શરીરને, આપણા આયુષ્યને, આપણા જીવનને લંબાવવા માગીએ છીએ, તેમાં ક્યાંય આપણે એને કર્મ કપાવવાના સાધન તરીકે લંબાવવા નથી માગતા. આપણે તો માત્ર લાંબુ જીવવું છે. આ સ્વજનો ગમે છે, આ પરિવાર ગમે છે, આ શરીર ગમે છે, એટલે જીવવું છે. એટલે એવી જ્યાં સુધી ભાવના હોય ત્યાં સુધી અનુકંપા જાગે નહીં. એટલે જે પડે જીવમાં અનુકંપા જાગી, ખરી અનુકંપા, તો જ્ઞાની કહે છે સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા. આસ્થા એટલે શ્રદ્ધા. શેની શ્રદ્ધા? જેમ આપણે ગઈકાલે વાત કરીને કે શ્રદ્ધા એટલે વ્યવહારમાં એમ કહેવાય દેવ, અરિહંત, ગુરુ નિર્ગ્રંથ અને કેવલીએ પર ઉપેલો ધર્મ. આની શ્રદ્ધા, કારણ કે આની અંદરમાં બધું આવી જાય છે. આજ સુધીની આપણી દેવની માન્યતાઓ, ભગવાન કેવા હોય એના માટે આખું જગત ગોથા ખાય છે. કેટલાય ભગવાનને કરતા માને છે, કેટલાય ભગવાનને નાશ કરનારો માને છે, કેટલાય ભગવાનને મેનેજ કરનારો માને છે, કેટલા લોકો ભગવાન જેવું અસ્તિત્વ જ નથી એવું માને છે. એને બદલે આપણા માટે કેટલું ક્લિયર પિક્ચર છે. પ્રત્યેક આત્મા, એમાં પડેલી શુદ્ધિ, એમાં પડેલું પરમ તત્વ એ જ પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા જગતનો કરતા નથી, જગતનું નુકસાન કરનારો નથી, સ્વગુણમાં પર્યાપ્ત એવું એક પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એવી આપણી પાસે ક્લેરિટી છે. તો દેવ, ગુરુ, કોના ગુરુ એટલે ગુ એટલે અંધકાર ને રૂ એટલે લઈ જાય. અંધકારમાંથી જે રૂ એટલે પ્રકાશમાં, જે અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જાય, જે આપણને માર્ગદર્શન કરે, તેવા ગુરુ કોણ હોઈ શકે? ગુરુ કોણ? તો કે જે પોતે સાચે રસ્તે ચાલ્યા અને જગતને સાચો રસ્તો બતાવે. તો એવા કોણ હોઈ શકે? તો કે નિર્ગ્રંથ મુનિવરો. મુનિવરો એટલે કે જેણે સંસારનું તમામે તમામ પ્રલોભનનું જગત છોડી દીધું છે અને એકાંત આત્માના હિત માટે જીવે છે. તો એને કાંઈ પોતાની મૂડી વેચવી નથી, પોતાનો માલ વેચવો નથી, પોતાનો પ્રચાર કરવો નથી, પોતાનો સંઘ સ્થાપવો નથી, પોતાના વ્યક્તિગત જીવન માટે કશું કરવું નથી, માત્ર જગતના હિત માટે જે બોધ આપે એવા નિર્ગ્રંથ, જેને ગુરુતા ગ્રંથિ પણ ન હોય, ગુરુપણાની ગ્રંથિ પણ ન હોય, એને ગુરુ કહેવાય. એટલે આવા ગુરુ અને આવો મારો ધર્મ. તો કે ધર્મ કયો? જુઓ ભાઈ, સૌથી આપણે જરા આડી વાતે છીએ, પણ આનો વિષય જ ગણજો કે આજે ધર્મ માટે લોકો બહુ જ કન્ફ્યુઝ છે.
બધા મૂંઝાય છે કે કયો ધર્મ સાચો. તો તમે ધર્મને ઓળખશો કેવી રીતે, પારખશો કેવી રીતે? આજે ધર્મની અંદર અનેક પ્રકારના તત્વો ભળી ગયા છે ભાઈ. એટલે જુઓ કે ક્વોન્ટિટીમાં ઘસારો થાય. તમારી પાસે સોનું હોય, સોનાની લગડી હોય, કદાચ તમે એને એક હાથથી બીજા હાથ, બીજા હાથથી ત્રીજા હાથ, આપણી બાની બંગડી હોય આપણે પહેરીએ, આપણી બંગડી આપણી છોકરી પહેરે, એમ કદાચ 4 પેઢી પહેરે તો 1.5 તોલાની બંગડી કદાચ 1.5 તોલામાંથી 1 ગ્રામ વજન ગુમાવે, પણ એનું સોનું ઘસાય. અંદરનું સુવર્ણનું તત્વ છે જે 24 કેરેટ કે 22 કેરેટ કે 20 કેરેટ, એમાં ઘસારો પડે. જુઓ, ક્વોન્ટિટીમાં ઘસારો પડે, ક્વોલિટીમાં ન પડે. એટલે ધર્મમાં ક્વોન્ટિટીમાં ઘસારો પોસાય પણ ક્વોલિટીમાં ઘસારો ન પોસાય. ધર્મમાં કદી પણ ક્રાંતિ ન કરાય. જ્ઞાની કહે છે તારા પ્રવાહને અખંડ રાખજે. એટલે આજકાલે આપણે એવું કહી દઈએ, ડિક્શનરીમાં બદલી નાખીએ કે આ દૂધ છે, પાણીને કાલથી દૂધ કહેવું. આપણે સર્વાનુમતે નક્કી કરીને ડિક્શનરીમાં મૂકી નાખીએ કે પાણીને હવે કાલથી દૂધ કહેવાનું, તો નવી પેઢી એને દૂધ જ કહેશે, કારણ કે ડિક્શનરીમાં વર્ડ નવો ઉમેરી દીધો. તો પણ પાણીમાં દૂધના ગુણો આવી શકે? ન આવી શકે. એમ આને ધર્મ કહી દેવાથી એ ધર્મ તત્વ ન બની જાય. કોઈ પણ વસ્તુને ધર્મ બનાવતા પહેલાં એનું મૂળભૂત સ્વરૂપ એ ધર્મમાં છે કે નહીં જોવું પડે. એટલે આ વિઝન જેનું ક્લિયર થાય એવો જીવ પોતાના મનથી પછી જે નક્કી કરે, એ નક્કી કરેલો ભાવ એને છેક મોક્ષ સુધી ભેગો આવે. એટલે તો ગતિ નક્કી થઈ જાય. આ ભવ ક્યારથી નક્કી થાય છે? કોઈ પણ જીવના એમ કહે ને કે સમ્યક દર્શન થયા પછીના ભવ ગણાય. એમાં જો જીવ સમ્યક દર્શન વમી ન નાખે ને તો એ જ ભવમાં, અને ધારો કે વમી નાખે તો પણ સાથે પુરુષાર્થ ચાલુ રાખે તો ત્રીજો ભવ, 15મો ભવ, અને વધુમાં વધુ અર્ધપૂતગલ પરાવર્તને એને મોક્ષમાં પહોંચાડી દે. એ કયું તત્વ? એ ભાવ તત્વ છે. મારો ભાવ એક જ છે કે મારે મોક્ષમાં જવું છે, બસ. તમે જ્ઞાની કહે છે આટલું તું એકવાર નક્કી કર, અને પછી જો કે એ ભાવનું બળ તને વિવેક આપશે કે શું કરું તો પારકું લાગે ને પોતાનું લાગે. આટલો જ વિવેક. જે દિવસથી તમને તમારું લાગવા માંડે ને પારકું લાગવા માંડે એટલે સમજી જવું કે હવે આપણે મોક્ષ તરફ છીએ. અત્યાર સુધી આપણને જેટલું બધું પારકું છે ને, દેહ, પરિવાર, પૈસો, એ બધું કોનો લાગે છે? આપણો લાગે છે. અને પોતાનો કોણ છે? આત્મા. તો એની ચિંતા જ નથી થતી, એનો વિચાર જ નથી આવતો. એટલે જ્યારે પોતાનું લાગવા માંડે, પારકું લાગવા માંડે ને પારકાના લક્ષ્ય કરવું પડતું દરેક કામ મજૂરી લાગવા માંડે, અને પોતાના માટે કરવામાં આવતી દરેક ક્રિયા અંદરમાંથી પ્રમોદ ભાવ ઉત્પન્ન કરાવે, અંદરથી પ્રસન્નતા પ્રગટાવે, ત્યારે સમજવાનું કે આપણો વેગ વધ્યો. અને પછી તમે જે એમાં નિર્ણય કરો, ભગવાન કોઈ ભવમાં મારે ક્યારેય પણ મીઠ નથી ખાવું, હવે મારે માંસાહારી બનવું જ નથી. આજે તમે જુઓ, એક માણસ કસાઈને ઘરે જન્મે ને બુચર, એનો જન્મ કરવાની ફરજ એને કોણ પાડે? કોણ કસાઈને ઘરે જન્મે અને કોણ શ્રાવકના કુળમાં જન્મે? હુ ડિસાઇડ? જેણે મનમાં વૈકલ્પિક રીતે પણ, એટલે મનમાં એક ચાન્સ પણ રાખ્યો હોય કે જરૂર પડે તો પ્રાણીને મારી પણ શકાય, જરૂર પડે તો માંસ ખાઈ પણ શકાય, આવો પણ વિકલ્પ રાખ્યો હોય ને, એનું ભાવ જગત છે ને એને એ દશામાં જે લઈ જઈ શકે. જ્યારે એમ વિકલ્પ રાખ્યો હોય કે પ્રાણના ભોગે પણ મારે હવે માંસાહાર તો કરવો જ નથી, તો એને એવા જ યોગ મળે કે જ્યાં એને માંસાહાર કરવાની ભાગ્યે જ જરૂર પડે. અને ધારો કે જરૂર પડે ને તો એમાં શું કરે? ટકી શકે. એટલે કોઈ પણ કસાઈને ઘરે જન્મવાની ફરજ કર્મ નથી પાડતું, પણ કર્મ બાંધતી વખતનો ભાવ. એટલે આપણે અત્યારે ધ્યાન છે પૂર્વના ઉદય છે, એ ભાવને અત્યારે ધોઈ નાખવાનો છે. મેં ને તમે પૂર્વે 100% સાચું એ સાચું ને સાચું, ખોટું એ ખોટું ને ખોટું, એવું 100% ડિસાઇડ નથી કર્યું. એટલે જ અહીં સુધી આપણે આવ્યા. હવે આ ભાવમાં એક પ્રોગ્રામ કરી નાખો તમે. આપણા જીવનની અંદરમાં આખી ખરેખર કુદરતના જગતની એક આ મોટી માઇક્રોચીપ છે. મારો ને તમારો આત્મા, એના ઉપર અનંત કર્મોના લેયર, એ બધા માઇક્રોચીપમાં ફિટ થાય છે, અને એ જ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે જ એ વર્ક કરે છે. તો આખી માઇક્રોચીપ બદલી કાઢો,
મેં આજ સુધી દેહને મારો માન્યો, પરિવારને મારો માન્યો, પરિગ્રહને મારો માન્યો, એના માટે જીવ્યો, એના માટે રડ્યો, એના માટે મર્યો, પણ ભગવાન આ બધું મારું મિથ્યા પરાક્રમ હતું. તે બતાવેલો એક જ રસ્તો, એ રસ્તામાં આડખીલી રૂપ એ મારું અજ્ઞાન, એના કારણે હું આવા વિકલ્પો હજુ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરું છું. શું કરું છું? ધર્મમાં આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ શું કામ કરીએ છીએ? કે હજુ આપણને સંસાર તરફનો અભાવ નથી થયો. એટલે આપણને એક વખત નક્કી કરી જુઓ. જ્ઞાની કહે છે એકવાર નક્કી કરી જુઓ. જેણે જેણે પણ જીન ખોજા તીને પાયા, જેણે ગોત્યું, જેણે નક્કી કર્યું એટલા જ જીવો એ મેળવ્યું છે ને એટલા જ જીવો મોક્ષમાં ગયા છે. બહુ જ સાદી શરત છે. આ શરત પરમાત્માના માર્ગની કેટલી નાની છે કે તમે ન કરી શકવાના હજારે હજાર કારણ કબૂલ, નહીં કરને કે लिए जो भी वजह है, जो भी कारण है वो सब कबूल, कि हमारा शरीर ऐसा है, हमारा घर ऐसा है, हमारा लेकिन नहीं मानने के लिए कौन सा कारण है? मान्यता में शुद्धि करो तो मान्यता से आपको दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा. ऐसे ही सम्यक दर्शन पाते ही, वो तो मैं आपको सरल भाषा में समझाया, लेकिन ज्ञानियों ने ये भाषा में बताए, अगर एक बार सम्यक दृष्टि जीव बन गया, उनका जन्म कहाँ कहाँ नहीं होता. कहाँ नहीं होता? 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चौरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंज पचेन्द्री અને 14 લાખ દેવતામાં પણ ભવનપતિ, વાણવ્યંતર અને જ્યોતિષી અને બાકી નારકીના બધા, આટલી ગતિના તો બંધ જ બંધ થઈ ગયા. एक बार भगवान के मार्ग को सही मानने वाला, वास्तविक रूप को स्वीकार करने वाला, उनकी आयु कभी भी उसमें बनती ही नहीं. अगर बनती है तो जब आपकी सम्यक दृष्टि का वमन हो गया हो, आपकी दृष्टि चली गई हो और मोह के धुएं में फंस गए हो और मोमेंटरी भी आपने ऐसा मान लिया हो कि चलो जाने दो, ये जन्म में नहीं अगले जन्म में देख लेंगे, ये टाइम ये कर लेते हैं, तो उस समय क्या हो गया? सम्यक दर्शन का वमन हो गया. जैसे भगवान महावीर की आत्मा मरीचि के भव में, मरीचि के भव में क्या हुआ था उनको? जब ऋषभदेव जी देशना देते थे, उस वक्त सब आके वहाँ बैठ जाते थे संवत्सरण में. और मरीचि जो भरत का बेटा था, चक्रवर्ती ऋषभदेव परमात्मा का चक्रवर्ती बेटा भरत और उनका बेटा मरीचि, वो भगवान के ज्ञान से प्रभावित हो चुके थे और उनको भी मोक्ष लेना था, मोक्ष में जाना था. तो उसने आके भगवान से आज्ञा मांगी थी कि भगवान आप जो बताते वो वही सही है. वो पूरा संसार का त्याग करने के बाद ही मैं पूर्ण पापों से छुटकारा पा सकता हूँ, लेकिन मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से त्याग करूँ. तो मैं क्या करूँगा? मैं पैरों में वो लकड़े वाली अपने चाखड़ी कहता ना, साधु लोग को पहरे, वो पहनूंगा, हाथ में दंड रखूँगा. वो डरता था कि मैं जंगल में जाऊँगा, वहाँ के प्राणी मेरे पीछे लगेंगे, मुझे काट खाएंगे. तो उनका अभी शरीर के प्रति मोह छूटा नहीं था, मोक्ष चाहिए था, मोक्ष जाना था, जाना जरूरी भी है वो मानता था, लेकिन शरीर के प्रति का मोह छूटा नहीं था. इसलिए उसने वो दंड भी धारण किया और ऊपर छत्र लिया, वो लकड़े की जो अपने छतरी कहता है लाकड़ानी एवी, એટલે 3 दंड त्रिदंड धारण किया. और वो आज्ञा भी भगवान से ले ली कि भगवान मैं इतना कर पाऊँगा. और तीर्थंकर कभी किसको इतना नहीं बोलते हैं कि इतना ही क्यों करता है. आपने देखा है कभी किसी ने भी आके बोला कि भगवान मुझे बोधि बीज का दान करो, मुझे सम्यक बताओ सही क्या है? तो भगवान बोलते सही जानेगा और आगे कुछ करेगा तो नहीं. ऐसा नहीं बताया. उसने बोला सत्य समझना है समझ ले, लेकिन जो भी करना है अभी का अभी कर, क्योंकि काल का भरोसा है नहीं. कोई बोलता मुझे श्रावकपन दो, मैं मर्यादा करना चाहता हूँ, अपने पापों से छूटना चाहता हूँ, तो बोला यथा सुखम, आपको जो ठीक लगे वो करो. और जब वो बोलते थे कि मुझे साधु बनना है, तो बोलता यथा सुखम, हर एक को बोला आपको जो सही लगे वो करो, जो सुख में हो आप सुख से कर पाओ वो करो, लेकिन अभी का अभी करो, क्योंकि आपके भाव का भी भरोसा नहीं है. आपके आज के भाव 2 पल के बाद भी बदली हो जा सकते हैं, और काल का भी भरोसा नहीं कि आप अभी हो कल होगे कि नहीं. तो इस तरह से
मरीचि को भी उसने वो त्रिदंड धारण करने को मना नहीं किया, लेकिन मरीचि की श्रद्धा में था कि जो ऋषभदेव जी बता रहे हैं वो पूर्ण ज्ञान ही, पूर्ण मार्ग ही मोक्ष के लिए पूर्ण है। मैं जो करता हूँ वो आधा सत्य है, अधूरा है। तो जब वो इतना बड़ा व्याख्यानी था और इतनी ज्ञान की उनके पास प्रतिभा थी कि जो भी एक बार उनको सुने ना वो वहीं का वहीं बैठ जाता था और मरीचि से प्रार्थना करता था कि आप मुझे आपका शिष्य बना लो। आप दादा ऋषभदेव जो भी बोले वो भी सही होगा, लेकिन तो मैं तो आपसे प्रभावित हूँ, आप मुझे क्या करो, शिष्य बना लो। तो उस समय क्या बोलता था, धर्म मेरे पास नहीं है, मैं तो आधा धर्म करने वाला हूँ, पूर्ण धर्म तो दादा ऋषभदेव के पास है, वहाँ चला जाओ, वहीं जाके आप दीक्षित बनो। तो उनके मन में स्वीकार था, देखो कर नहीं पाता था लेकिन मानता था कि करना तो पूर्ण रूप से, तो उनका सम्यक तो बचा रहा। लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ कि धर्म में भगवान की जो श्रद्धा थी उनकी कि मेरा शरीर जब भी चलने वाला हो तब तक चलेगा, अटकने वाला हो तो अटकेगा, मेरे शरीर के धर्म ही मेरे शरीर के लिए काम का है, बाकी और कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। वो शरीर को घाती कर्म और अघाती कर्म के ज्ञान से पहले जानता था कि शरीर का धर्म है वो रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन शरीर का मोह आ गया। एक बार वो भोजन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में बेहोश होके गिर गया, बड़ा हो गया था, उम्र हो गई थी। तो उसने सोचा अभी मेरा क्या होगा। देखो धर्म का मार्ग कितना सरल भी है और कितना सावधान रखने को भी कहता है। तो उसने चलते चलते ये सोचा कि अभी तो मैं बेहोश हो गया, गिर गया, कल जाके मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इससे भी बड़ा तो मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, तो मैं कैसे जीऊँगा। पुण्य के ऊपर से भरोसा गया और शरीर के ऊपर भरोसा आ गया। हम भी देखो, हम पुण्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अपनी व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई धन पूरा हो, पर्याप्त हो तो आगे जाके हमारी सेवा चाकरी हो जाएगी। ऐसा हुआ है कि जिनके पास पर्याप्त धन हो उनकी पर्याप्त सेवा होती ही हो, कि जिनके पास पूरा पुण्य हो उनकी सेवा होती है। देखो तो हमें थोड़ा तो अंदर से कर ना पाए तो नहीं, लेकिन माइंड में तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि मेरी सेवा में, मेरी शांति में, मेरी सुविधा में, मेरी तंदुरुस्ती में मेरे पुण्य ही सबसे बलवान तत्व है। मेरे पास धन होगा, परिवार होगा, सेवा करने वाला होगा, लेकिन मेरा पुण्य ही नहीं होगा बाकी का, तो मेरी शरीर की सेवा वयावच करने पर भी मैं साता नहीं पाऊँगा। तो इस तरह से उनका इतना ही भरोसा गया और उसने गलती से इतना बोला, गलती से मन की मोह से, गलती माने अब हम बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ थॉट, और स्लिप ऑफ टंग कभी होता ही नहीं है। वास्तव में तो पहले विचार में आता है फिर मुंह पे आता है। हम तो बोले मन में कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोला ही नहीं जाता, मन में पहले होगा और अभी बाहर आ गया। तो इसने जब एक कपिल नाम का राजकुमार जब उनके पास आया और उसने आके बोला कि आप हमें दीक्षा दो, आपका शिष्य बना लो। हर समय वो बोलता था कि नहीं ऋषभदेव के पास जाओ। फिर वो बोला मैंने सुना है कि आप तो बताते हो कि धर्म उधर है इधर नहीं है, तो क्या ये बात सही है। दीक्षा लेने से पहले थोड़ा वेरीफाई किया कि आप तो सबको, और हमारे दोस्त आए थे और लोग आए थे, उसने बताया कि भाई मरीचि जी तो बोलते हैं कि धर्म उनके पास नहीं है, तो क्या आपके पास धर्म नहीं है। तो उसका जवाब क्या था, ध्यान से सुनना। उसने बताया कविला इहम पी इत्थम पी, हे कपिल धर्म उधर भी है और यहाँ भी है। कितना बोला, यहाँ भी है, वहाँ तो ना नहीं बोला वहाँ धर्म नहीं है, इतना ही बोला कि यहाँ भी है। और उसका सम्यक ज्ञान चला गया, उनकी समझदारी चली गई। कैसे कि उनका विश्वास चला गया। वो खाली बोलने के लिए नहीं बोला था, वो मानने लगा था कि ये भी चल सकता है। और उसी वक्त उसका भगवान महावीर बोलते मेरा सम्यक तो चला गया। और बाकी के ये जो भव आए ना बीच में, वो इसलिए आए कि उनका सम्यक ज्ञान उसी समय चला गया था। और आजकल हम लोग ये धर्म है, ये धर्म है, हर जगह अपना अज्ञान होने पर भी आपस में जब बात करते हैं और धर्म का खंडन मंडन करते हैं, बिना जाने बिना पहचाने
अधूरा ज्ञान, अल्पज्ञ और हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं और बोलते हैं कि बस यही धर्म है। अरे वो बोला था इतना इधर भी धर्म है, यही धर्म तो बोला नहीं था, उधर भी धर्म है इधर भी धर्म है। इतना बोलने पर भगवान महावीर बोलते हैं कि मेरा ऋषभदेव दादा के काल में ही मोक्ष होने वाला था, लेकिन इतना काल 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का चक्कर चलना पड़ा महावीर स्वामी को, बीच में नरक में भी जाना पड़ा। तो जब सम्यक तो बनाए रखो, समझ में जो है धर्म तत्व उसको बनाए रखना, ये जैन धर्म की विशेषता है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये जगत के जीव क्या मानते हैं, कितने उलझे हुए हैं, उनके पास डायरेक्शन नहीं है कि ये करे तो धर्म, ये करे तो धर्म, ये करे तो धर्म। हमारे पास क्लियर विजन है। 18 पाप है, ये पापों को छोड़ना पड़ेगा। जो मिथ्या दर्शन है कि ये भी सही वो भी सही, इनको छोड़ना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा धर्म है। और दया मूल धर्म बताया। क्या बताया? जिनमें करुणा हो, हर एक जीव को जीने का जो संसार को हक मिला है, किसी का हक छीनने का हक हमने किसी से मिला नहीं है। चाहे कैसे भी करो, आयुष्य हमें भी प्यारा है, हर एक को प्यारा है। कौन हमें अपना आयु प्रदान करता है? किसने हमें परमिशन दी कि मेरी जिंदगी ले लो? तो पाप जितने करेंगे उतने भुगतने पड़ेंगे। तो इतना मानने पर आपके पाप से बच जाओगे। आप पाप नहीं कर पाओगे, भगवान का प्रोमिस है। खाली मानना शुरू करो, इनकी ताकत देखो। अगले बार हमने बताया था कि जब कोई सुपारी है ना टूटती नहीं है, तो उनको सुड़ी में लेके ऐसा जोर से एक बार दबाओ तो उसके ऊपर क्या पड़ जाता है? एक घिसी पड़ जाती है, फिर वो छटक नहीं पाती। तो अनादि की हमारी जो मान्यता का तार चला आया है, उसमें भगवान की आज्ञा से एक बार क्या दो, उसको काट दो, फिर जुड़ भी जाएंगे, लेकिन उसमें सांधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साड़ी में आ जाता था ना, एक जोड़ वाला साड़ी मिलता था, उनकी कीमत आधी हो जाती थी। तो हमारे संसार की कीमत आधी हो गई। जो अनंतानुबंधी के कर्म बनते थे वो बनते ही नहीं। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद हमारे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ा करोड़ी के अंदर, अंतो करोड़ा करोड़ी, बस इससे ज़्यादा कर्म ही नहीं बनते। जैसे बताया था कि एक देखता हुआ अंधा हो जाता है और दूसरा जन्म से अंधा होता है। दोनों का अंधियारा एक समान है ना? एक जन्म से अंधा और एक बाद में हुआ अंधा, दोनों की आंखें पूरी पूरी बंद है। उसको डार्कनेस जो दिखती है वो समान दिखती है। फिर भी जब देखने के बाद अंधा हुआ आदमी जब किधर टेबल से टकराया तो उसके अंधेरे में भी उसको कुछ कल्पना में आता है कि ये टेबल है ना? क्योंकि उसने एक बार टेबल देखा है। और जो जन्म से अंधे उसको दिखता ही नहीं है और वो सोच भी नहीं सकता है कि क्या है। उसी तरह से एक बार सम्यक ज्ञान किया हुआ जीव अगर दूसरी बार मिथ्यात्व में आने के बाद पाप भी करता है तो भी उनका अंदर में एक बार जो लाइट हो गया था, एनलाइटन जिसको बोलते हैं, एक बार जो प्रकट हो गया था, पाप है, ये गलत है, वो जो अंदर से आ गया था ना, वो उनको बल देता रहेगा। वो अनंतानुबंधी का कर्म ही नहीं बांध सकता। दुर्गति में जाने वाला बंध उनका कम होता जाता है। तो हमें ये जन्म में इतना पक्का करना है। तो अगर हम हृदय से, मान्यता से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से ये नक्की करें कि हमें मांस खाना ही नहीं है, कोई भी रूप में, किसी भी हाल में, कहीं भी, वो पक्का करो। तो इतना पक्का करो कि भगवान मोक्ष में जाऊं तब तक मेरी वहाँ जन्म न हो। तो ज्ञानी ने तो वहाँ तक बताए, सुबाहु कुमार का अधिकार दिया है सुख विपाक जी सूत्र में। तो उसमें बताया है कि जब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक, पहले जब ज्ञान हुआ ना सम्यक ज्ञान, तब से लेके उनका 15 जन्म हुआ, खाली 15 भोग हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 15। अगर सम्यक तो का वमन न हो जाए ना तो 15 ही होते हैं। 15 में तो आप निकल ही जाते हो। एक मनुष्य का और एक देव का, एक मनुष्य का और देव का, बीच में एक भी जन्म नहीं आया, और वो भी वैमानिक देव का। ये भवनपति, वाण व्यंतर, ज्योतिषिक, ये जो व्यंतर जाति के देव कहे जाते हैं, ऐसे यक्षों वाला भव नहीं आया, वो वैमानिक वाला भव। और वो वहाँ भी नहीं चिपकने वाला, वहाँ भी रति आनंद नहीं करने वाला। वो तीर्थंकर के कल्याण को मनाते थे, जो उधर संवत्सरण में जाके बैठने वाले,
परमात्मा के चरणों में बैठने वाले देवताओं का भोग उनको मिलता है। वो यहाँ से अधूरा काम वहाँ भी चालू रखता है। तो इस तरह से हमारे लिए ये एक कितनी बड़ी बात है कि ऐसे जन्म हमारा मिला है मनुष्य भोग में। ये जन्म में अगर हम इतना पक्का करके मरे कि ये जन्म में मैं अपनी बुद्धि को आगे नहीं चलाऊंगा, मेरी बुद्धि का स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, मैं किससे चलूं, कैसे मानूं, कैसे सोचूं, मेरी सोच को रास्ता कौन दिखाएगा? तो मेरे परमात्मा की आज्ञा। मेरे परमात्मा ने मना किया है कि ये बात गलत है तो वो गलत ही हो सकती है, चाहे पूरी दुनिया बहुमति से, किससे शैलेश भाई, बहुमति से नहीं सर्वानुमति से भी बोले तो भी भगवान ने मना किया है तो मना है। झुक नहीं जाते हैं हम, मान्यता में नहीं झुकते। व्यवहार में हमारा नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन मान्यता में परमात्मा की आज्ञा सही है। तो देखो, कोई बोलेगा कि लहसुन खाओ आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल कम होने के बाद दूसरी वजह से हार्ट अटैक आ सकती है कि नहीं? एक कोलेस्ट्रॉल एक ही कारण नहीं है। तो अगर हमारा मरना होगा तो लहसुन खाने से, कोलेस्ट्रॉल घटाने से भी, दूसरी तरह से भी हम मर सकते हैं। लेकिन लहसुन खाया तो उसमें परमात्मा ने जो अनंत जीवों की हत्या का विधान किया है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये समझ के खाना, अगर खाना है तो खाओ, लेकिन ये समझ के खाओ कि इसकी कीमत कैसी चुकानी पड़ेगी। इतना करना है ये भव में, तो फिर आगे जाके हमारा मन इतना पक्का हो जाएगा कि हमारा मन उसकी ओर जाएगा ही नहीं। धीरे धीरे करके आज देखो हमारे लिए उपवास कितना आसान बन गया है। हमारे इतने बच्चे उपवास कर लेते हैं और दूसरों के बच्चे खाने के लिए रोते हैं, हमारे बच्चे उपवास करने के लिए रोते हैं। माँ बोलती है कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, खा ले थोड़ा, एकासना कर ले, लेकिन बच्चा बोलता है नहीं मैं आज उपवास करूँगा। ये देखो कहाँ से आया उसके ब्लड में, वो ताकत कहाँ से आई? इतने बच्चे को तो फुसलाया नहीं है, इतने बच्चे को तो खुद दिया नहीं, ब्लड में आया, जीन्स में आया। अगले जन्म में सोचा होगा कि एक तो उपवास करना है तो कर सकता है, ये सब जीन्स में चला आता है। ये जैन कुल में जन्म लेना ये कितनी बड़ी बात है, कितने जन्मों की शादी। ये जीन्स कहाँ से बनते आप सोचो। कोई खूनी बन जाता है तो बोलते हैं उनको जीन्स में चला आया है, अग्रेसिव हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जीन्स कौन बनाता है? हमारा भाव ही बनाता है। जैसा नहीं बनना है वैसा बनाने वाली ताकत पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। जो भी हम है, जो भी हम बने हैं वो पूर्वों के हमारे विचारों से ही हम बनते हैं। अगली बार एक बार मैंने ये बताया था कि कोई बोलता है कि वो परमाधामी कौन होते हैं? परमाधामी देवता होते हैं ना, जो नरकों में क्या करते हैं, नारकी को सजा करते हैं। तो हम यहाँ बैठे बैठे कभी सोचते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी समस्या है, गुनहगार है, इन सब को ख़त्म कर देनी चाहिए और मेरा बस चले तो मैं एक एक को मार मार के सीधा कर दूं। ऐसा भाव आता है मन में, और ऐसे भाव में उनके भाव की धारा, जब धारा पूर्ण रूप से ध्यान बन जाती है और तब जाके उनके जो पुण्य इकट्ठे होते हैं न, वो पुण्य उनको पर देवता तो बनाती है लेकिन परमाधामी बनाती है। क्या बनाती है? वो परमाधामी क्या करेगा? अपने देवलोक में कभी नहीं रहेगा। आज भी जेलर किधर रहता है? किधर रहता है? खुद का बंगलो भी हो लेकिन पूरी जिंदगी वो काटेगा किधर? जेल में काटेगा। क्यों काटेगा? क्या उधर उसको खुशी मिलती है? एक कैदी भी है उधर और एक जेलर भी है, दोनों काटते तो उधर ही है, लेकिन वो उधर सजा करके बैठे रहता है। उनका ध्यान तो क्यों उसको वही पोस्ट मिली? किसने वो पोस्ट दे दी? किसने पोस्ट दे दी? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। ज्ञानी क्या कहते हैं? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। एक जो भी मन में भाव आया ना, उनके अनुरूप पुण्य और पाप जो आए तो उसका जमा होना पुण्य और पाप का, और भावनाओं की वजह से उधर चले जाना। तो ये संसार में हमें कहाँ जाना है वो निश्चित हमारा भाव ही कर सकता है। शर्त इतनी है कि उनके अनुरूप पुण्य और पाप की पूंजी जमा होनी चाहिए। एक किसी को आप $1000 हाथ में दे दो और बोलो इसका तुझे जो करना है कर, तो वो क्या करेगा? हर एक के मन में कोई भाव होगा ना, एक ये करेगा, एक वो करेगा, ये करेगा। $1000 तो सबके समान है,
लेकिन हर कोई उसका खर्च किस में करता है, अलग अलग से। उसी तरह से पुण्य हमारी पूंजी है, हम जिधर चाहे उधर उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा अधिकार कर्म सत्ता ने हमारे हाथ में रखा है, आत्मा ही उसका सुकानी है। तो अभी हम अपने मन में ये परमात्मा की आज्ञा को सम्यक पराक्रम में लगाइए। किधर लगाना है? सम्यक पराक्रम में लगाना है। तो ज्ञानियों ने इसके लिए ऑल्टरनेट कितने रखे हैं, ये जरूरी नहीं बनता। जैसे तप में बताया तो 12 प्रकार बता दिए कि तेरा शरीर मजबूत नहीं है, कोई बात नहीं, उपवास नहीं बन पाए तो तू आयम्बिल कर, आयम्बिल नहीं बनता है तो रस परित्याग कर, रस परित्याग नहीं होता है तो द्रव्य का संक्षेप कर, द्रव्य संक्षेप भी नहीं होता है तो अपने इंद्रियों को थोड़ा मोह से वापस कर, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। काया क्लेश, क्षमापणा देना आदि वो भी नहीं होता है तो विनय कर, वयावच कर, प्रायश्चित कर, स्वाध्याय कर और ध्यान कर। ये सब भी तप है। ओ जो कर्म को आत्मा से अलग करता है उनको ज्ञानियों ने तप बताया। तप क्या है? जो आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म को जल्दी से छुड़ा देता है। तो इतने इतने विधान किए हैं। तो हम इसमें अभी देख रहे हैं, उसमें हमने देखा संवेग, निर्वेद और तीसरा था धर्म श्रद्धा। और धर्म की श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ की श्रद्धा, विधि विधान की श्रद्धा, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर तत्व की श्रद्धा जो रूप एक्चुअल में है। आप सब पढ़े लिखे हो, थोड़ा आगे सोचो कि तात्विक रूप से धर्म क्या है। तो धर्म है आत्मा को अपने आप में रहना। आत्मा जब विभाव में चली जाती है तो किधर चली जाती है? शरीर में, परिवार में और परिग्रह में। ये पूरा संसार 3 चीज़ में बंट गया है, शरीर, परिवार और परिग्रह। तो हम जब इसमें होते हैं ना, लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम कल सुबह से एक डायरी लिखेंगे, उसमें एक जगह लिखेंगे मैं और दूसरी पत्ते पे लिखेंगे मेरा, मैं और मेरा। फिर आप दिन भर का कार्यक्रम उसमें लिखना कि आज पूरे दिन में मैंने मैं के लिए कितना किया और मेरे उनके लिए कितना किया। तो मैं में कौन आ जाएगा? आत्मा, सिर्फ आत्मा। मैं कौन हूँ? आप कौन है? तो हम तत्वज्ञानी सब बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। लेकिन अगर मैं हूँ आत्मा, तो आत्मा के लिए आज पूरे दिन में आपने क्या किया? और मेरा, तो मेरा क्या है? शरीर, परिवार और परिग्रह। ये मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा परिग्रह। तो उनके लिए क्या किया? तो पूरा दिन किस में निकल गया है? मैं, मेरे पीछे या मैं के पीछे? मेरे पीछे, मेरे पीछे जो है ही नहीं मेरा। इनके लिए जो इकट्ठा किया, जितना भी पराक्रम किया, जितना भी कार्य किया, वो सब इधर का इधर रह जाएगा। गुरु भगवंत ने पूछा था कि आपका प्रोग्राम क्या है? अब आजकल क्या करते हो? तो बोला पढ़ता हूँ। बड़े होके क्या करोगे? नौकरी ले लूँगा या तो बिजनेस करूँगा। फिर क्या करोगे? फिर शादी करूँगा। फिर क्या करोगे? 2-3 बच्चे होंगे। आज तो एक भी मुश्किल है ना संभालना, लेकिन बोले 2 बच्चे होंगे तो आगे उनको ठीक से बड़ा करूँगा, उनकी सब जिम्मेदारी निभाऊँगा, उनको शादीशुदा करके ठिकाने पे लगाऊँगा। फिर मर जाना। तो बस ये सब मरने के लिए किया। ये सब किसके लिए किया? ये सब किया सबको छोड़ के जाना। जो भी किया वो उसको इधर का इधर छोड़ के जाना। तो हम जो साथ में आने वाला है वो हमारा कर्म, वो साथ में आने वाला है वो हमारा भाव, उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? शरीर को पोषण देने के लिए सुबह से शाम तक सोते हैं। अगर योगा करना है तो कितने लोग आ जाते हैं, और अगर सामयिक प्रतिक्रमण सुबह करना हो तो कितने लोग आएंगे? कितने आएंगे? संतर से पूछो। ये प्रतिक्रमण नहीं है, ये पश्चाताप की पावन गंगा है, ये रुदन है। प्रतिक्रमण बड़ा प्रायश्चित है। वो हम बोलते हैं कि ये तो सब तोते वाली बात है, जैसे बोले गए, तोता पाठ बोलते हैं, सब सुख पाठ बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि अगर भगवान महावीर ने बताया है तो उनकी कोई वजह होगी कि नहीं। ये 6 आवश्यक जो है वो 6 आवश्यक, सामायिक 1, चौसंतो 2, वंदन 3, प्रतिक्रमण 4, कायोत्सर्ग 5 और छठा प्रत्याख्यान पचखान, ये किसने किया है?
महावीर ने खुद ने किया, गौतम गणधर ने किया, सुधर्मा स्वामी ने किया, जम्बू स्वामी से लेके आज तक की परंपरा में किसी भी आचार्य से जाके पूछो, क्या प्रतिक्रमण करते हो? क्यों करते हैं? हमसे तो बहुत कम पाप करने वाले वो है, तो भी उनको धोना पड़ता है, तो हमको नहीं धोना पड़ेगा? इतने साधु भगवंत को करना पड़ता है और कर रहे हैं, करेंगे, और हम बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है? क्यों भरोसा नहीं करते भगवान पे? आप कपड़े रोज के रोज मैले हो जाते हैं तो उसको भी रोज नहीं किया तो इकट्ठा 8 दिन का सफाई तो करते हो ना, तो आत्मा के ऊपर कितना मेल लगता है। हर चीज का विश्वास करो और एक जन्म दे दो भगवान की आज्ञा को कि भगवान आपने बताया तो जरूर वजह होगी। तो इसमें धर्म श्रद्धा के बाद बताया गुरु और साधर्मी की सेवा। ये तो है कि हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारे लिए दिशा सूचन करने वाले, हमारे उपकारी, जो स्वयं जीता जागता आगम है। गुरु क्या है? वो आचार्य जी पढ़ो या न पढ़ो, आचार्य देखना है तो गुरुओं के पास जाओ। वो जीता जागता आचार्य है। महावीर के आचार क्या थे? धर्म में कम से कम पाप से कैसे जिया जाता है। और कभी सोचो, एक भी जीव को मारे बगैर, किसी की भी हत्या किए बगैर खाना मिल जाए, पीना मिल जाए, रहना मिल जाए, सोना मिल जाए और धर्म ध्यान भी कर पाए, ऐसी सुविधा जिन शासन में मुनि भगवंतों को है। हमें तो बगैर पाप किए एक रोटी भी नसीब नहीं होती। साधुओं को पाप करने पड़ते हैं रोटी खाने के लिए, उनको रहने के लिए मकान बनाने पड़ते हैं। शासन का पुण्य देखो। हम बोलते बम्बई में करोड़ों की बात चलती है, जब ब्लॉक की बात होती है तो वो कहाँ कितने उपास रहे हैं। इसमें किसने, हम 24 घंटा बाहर जाना है तो एक पैसा लेके नहीं निकले तो चलेगा नहीं। सबसे पहले वॉलेट रखेंगे ना आप, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले रखेंगे। बोलेंगे भाई 24 घंटा भी कहीं जाना है तो पैसे तो पास में होने चाहिए, और वो निकल पड़ते हैं जिंदगी भर के लिए एक पैसे भाई लिए बिना। किसके भरोसा होगा उनका कि मेरी जिंदगी भर की व्यवस्था कौन संभालेगा? मेरा पुण्य संभालेगा, मेरा शासन संभालेगा। ये भरोसा हमें नहीं है। हमें भरोसा है वो अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है खाली। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि पुरुषार्थ से तो पुण्य प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। बहुत बार हमने बताया है इधर कि आप कहीं नल से पानी निकालते हो और समझते हो कि पानी नल से आया। हुआ था ना एक बार कि जब कोई एक डेप्यूटेशन गया था जिनको पानी चाहिए था, छोटे गांव में पानी नहीं आता था, तो गवर्नमेंट से पानी मांगने के लिए डेप्यूटेशन गया और महाराष्ट्र के गांव से आया था, बम्बई में आया और उसको ठहराया गया अच्छे से गेस्ट हाउस में जो होटल जैसा था। और पानी मांगने वाले ने कभी नल को देखा नहीं था, छोटे गांव से आए थे। तो उसने देखा कि बाथरूम में गए और वहाँ देखा तो एकदम 6-7 वॉश बेसिन थे और वहाँ तो हाथ नीचे लगाया और पानी आ गया। वो खुश हो गए, अरे तो शहरों में तो बड़ी बात है, हम तो पानी पानी करके इधर तक आ गए और इधर तो फिर सिर्फ हाथ रखा और पानी आ गया। लेकिन आता है कहाँ से? वो सोचते रहे। देखा तो ये पाइप से आता है। इतना आसान तो पाइप ही क्यों ना ले ले? गवर्नमेंट से पानी मांगने की क्या ज़रूरत है? पानी बम्बई में आता है तो अपने गांव में आना ही चाहिए। हम तो ऐसा ही पाइप ढूंढ लेंगे। और गए सब पाइप ढूंढने और शाम तक तो पाइप मिल गया, सब वैसा वाला ही नल मिल गया। गांव में 50 घर थे, तो सबके लिए 5-5 पाइप ले लिए, 5-5 नल ले लिए और खुश होते। वो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने अपनी मांग का वो तो दे दिया उनको, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन तो, लेकिन ये सब खुश हो गए। थैला भर के क्या किया भाई? थैला भर के गांव चले गए और घरों में बांट दिया और बोला कि आप अपने दीवारों में लगा दो। तो बोला इससे क्या फ़ायदा होगा? तो कि पानी मिलेगा। तो कि कैसे मिल सकता है? अरे हम लेके आए, हमने खुद ने बोला। आपका अनुभव है? हाँ मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, पानी पाया है, आप भी करो। सब ने लगा दिए नल और हाथ रख के खड़े हो गए। पानी मिला
तो नल क्या दे सकता है? वो पानी को प्रकट कर सकता है, पैदा नहीं कर सकता। पैदा कहाँ होता है? जलाशय में होता है। हमारा पुरुषार्थ हमारा पुण्य को प्रकट करता है, पैदा नहीं करता। पुरुषार्थ से मिलने वाले ये भौतिक तत्व जो है वो हम मानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से हम इतना कमाया, नहीं कमाए, पुरुषार्थ से नहीं कमाए, वो हमारे पुण्य से कमाई हुई जो पूंजी थी उसमें से पुरुषार्थ से प्रकट हुआ है। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि ये बात क्या है कि कोई 10 घंटा काम करे तो भी उनको जितना मिले उससे कम 1 घंटा काम करने वाला कमा सकता है उससे ज़्यादा। काम कम करता है लेकिन कमा सकता है, क्यों? पुरुषार्थ से प्रकट होता। ये रूल अगर है तो जितना भी पुरुषार्थ किया उतना हर एक को मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। तो हमारा भरोसा पुरुषार्थ पे जितना है उतना पैदा करने में नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं कि इसलिए हम ये संसार की तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये संसार वाली चीज़ों में पुरुषार्थ नहीं चलेगा। कर्म वाली बात, जो घाती कर्म वाली बात है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इनमें पुरुषार्थ लगाओ, जितना भी लगाना है लगाते रहो और केवल ज्ञान भी पालो। और संसार के जो संतति, संपत्ति, समृद्धि, यश, नाम, कीर्ति जो भी है वो कैसे मिलेगा? सबकी फरियाद है कि हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें कोई यश नहीं मिलता। प्रेसिडेंट बन गए लेकिन यश नहीं मिला ना? मिला? देखो देखो, तो फिर इतना दुख दर्द क्यों होता है हमको? वो एक्सपेक्ट नहीं होता तो हमसे मुँह भी से, आपकी एक की बात नहीं, सब इसमें आ जाते हैं। कहने की बात ये है कि यश अभी पैदा नहीं कर सकते, वो जो तकदीर में होता है वो बाहर आता है। क्या होता है? आपने अगर यश नाम कर्म न बांधा हो तो आज जान भी दे दो, कोई यश नहीं मिलेगा। और कहीं कुछ भी नहीं करो और यश नाम कर्म यहाँ तक हो तो अपने आप यश मिल जाता है। तो कहने वाली बात ये है कि जो जहाँ से जिस तरीके से पैदा होता है उस तरीके से पैदा करना और उस तरीके से पाना चाहिए। तो संसार वाली जो चीज़ है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 चीज़ में वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं चलेगा, ये प्रीपेड कार्ड है। और जो वर्तमान की पुरुषार्थ वाली चीज़ है वो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। और हम आज तक लगे रहे हैं वो ये 4 चीज़ में लगे रहे। हमारी आयुष्य बढ़ाने के लिए कितना करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। फटाके की तरह समाचार आता है कि रात को तो अभी हॉस्पिटल लेके गए थे, सुबह में तो जान निकल गई। सभी डॉक्टर खड़े थे, ऐसा नहीं था कि एम्बुलेंस नहीं आई, या तो ऐसा नहीं था कि उनको सारवार नहीं मिली, सब कुछ था, लेकिन आयु ही कम हो गई तो क्या करे। ये मानते हैं लेकिन फिर भी आयु बढ़ाने की मन में चाहते हैं कि नहीं चाहते। जरा भी मन में आया कि मेरा कुछ हो जाएगा, उसी वक्त मांगने लगते, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। पर तेरी आयु होगी तो तू बचेगा, मैं कैसे बचाऊं? तो ज्ञान के लिए कभी चाहा कि भगवान मेरा अज्ञान तोड़ दे, तो भगवान बोले खड़ा हो जा। वो कभी एक बंदे ने खुदा से पूछा था कि ये मेरे परवरदिगार मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो भगवान बोला क्यों कर नहीं पाता, उठ खड़ा हो जा। खड़ा हो गया। तो फिर बोले भगवान कि एक पैर उठा। तो बंदे ने पैर उठाया, आप उठा सकते हो ना? तो उसने फिर बोला दूसरा उठा, नहीं उठा। देखो क्या बात है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि पहला पैर उठाना तेरे हाथ में है, लेकिन दूसरा पैर उठाना तेरे हाथ में नहीं रहेगा। तू जो पुरुषार्थ आज करेगा उसके पीछे पीछे तेरा दूसरा पैर जाएगा। पहला पैर उठाना ये तेरे बस में है, दूसरा पैर ये लोग बोलते खुदा के हाथ में, लेकिन हम बोलते हैं कि अपनी आत्मा के साथ में ही सब कुछ है। कि अगर हमने जो घाती कर्म है उनके ऊपर प्रयत्न किया तो वो सम्यक पराक्रम है, और जो अघाती है उनके ऊपर जितने भी प्रयत्न किए वो मिथ्या पराक्रम है। तो भगवान कहते हैं कि संसार के प्रति का जो अनुराग है
मोह है, आकर्षण है, ये मिथ्या पराक्रम है। चाहे कितना भी प्यार करो, कितना भी प्यार करो, लेकिन अंत में वो प्यार करेगा ही, इसकी कोई गारंटी है? सब बोलते हैं ना, या तो ऐसा होता है कि सातों जन्म आप मिलो, या तो बोलते हैं सातों जन्म में वापस कभी ना मिलो। दो एक्सट्रीम है, किधर है? ये संसार का ये स्वभाव ही नहीं है कि आप जिसको चाहो वो आपको चाहे ही चाहे। ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। आप चाहो आपकी मर्जी, वो चाहे वो बोलते मैं इतना करती हूँ तो वो मेरे और ऐसा क्यों करते हैं? अरे पर वो उनकी मर्जी, तेरी मर्जी नहीं तो तू कर। क्या हमारी टेरिटरी है दूसरे का मन? नहीं है। ये इतना समझो तो हमारा जीवन में कभी कंप्लेन नहीं आएगी, फरियाद नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है, तत्व ही नहीं है कि दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। और गलत जगह पे ही उम्मीद करते हैं। क्या करते हैं? गलत जगह पे हम उम्मीद करते हैं। तो मरीचि ने जैसे इस बात पे सम्यक का वमन कर दिया था, इस तरह ज्ञानी बोलते हैं कि अभी इनके ये धर्म श्रद्धा और साधुओं की वयावत साधर्मी की सेवा के बाद आता है आलोचना निंदा ग्रहा। तो आलोचना निंदा ग्रह में क्या करते हैं हम? आलोचना किसकी करते हैं? बाहर वालों की। आलोचना माने चारों ओर से देखना, क्रिटिक बनना। तो हम क्रिटिक किसके बारे में बोलते हैं? कि जो दूसरे के बारे में ही रोज़ सोचते हो, इसने वो टाइम पे ये किया था, ये वो नहीं करने वाला है, इनके बारे में तो मैं जानती हूँ कि जो बोलेगी वो करेगी ही नहीं। ऐसी सब बातें हम करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि भगवान के मार्ग में है कि अनंत काल निकल गया दूसरों की ओर उंगली ताकते ताकते। क्या हो गया? हर जन्म में हमने हर एक के प्रति एक न एक पूर्वग्रह बांधा है। आपके पास आके कोई बोले कि अमिता ऐसी है, समझो आपने अमिता को देखा भी नहीं है, उसकी भाभी हो या ननद हो, कोई उसके बारे में बताए कि अमिता मेरी ननद है और उनका नेचर ऐसा है, वो ऐसा करती है। आपने क्या पकड़ लिया? वो बात सुनी और पकड़ ली। फिर जब अमिता सामने आएगी तो आप बोलेंगे वो बोल रही थी वही अमिता ना। आपसे क्या लेना देना उनका, लेकिन आपके मन में बांध लिया कि वो ऐसी है। ज्ञानी कहते हैं गड़ी जવું અને ગાળી નાખવું। ગળી જવું એટલે ઉતાર લેના। क्या आप हमारे लिए कोई कुछ बोले, આપણા માટે કોઈ बोले ने तो इन्हें गड़ी जजो। शू करजो? गड़ी जजो, गल जाना, उसको निगल जाना। वो बोलता है, वो उनकी दृष्टि है, वो मानता है, वो उनकी मान्यता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं वैसा हूँ, लेकिन हम तो बोलते हैं वो ऐसा माने क्यों? वो ऐसे मुझे ऐसा मान कैसे सकती है? अरे भाई वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी है, वो तुझे ऐसा माने, उसमें तू क्या कर सकती है? लेकिन दूसरे के बारे में वो जो बोले उसको क्या करना? गाड़ी नाखजो, એને ફિલ્ટર કરી નાખજો। બીજા માટે કોઈ અભિપ્રાય આપે તો એને ફિલ્ટર કરી નાખજો, અને તમારા માટે કોઈ અભિપ્રાય આપે તો એને શું કરજો? ગળી જજો। જીવનમાં પૂર્વગ્રહથી મુક્ત થઈને આ જગતના જીવો સાથે પૂર્ણ વિરામ મૂકીને જો છુટકારો મેળવવો હોય, કભી છૂટના है तो इतना कर ले हम कि ये जन्म में जिनसे हम मिले हैं उनके बारे में कुछ भी न सोचे। क्रिटिक मत बनो, आलोचक मत बनो, जो भी है अपना सोचो कि अरे इसने तो एक बार किया, मैंने तो इनके बारे में कई बार कहीं न कई अभिप्राय बांधे हैं। आप इसमें से एक दूसरे को देखो, हर एक के बारे में आपके मन में कोई न कोई ओपिनियन है कि नहीं है कि नहीं? तो हम दूसरे के लिए ओपिनियन रख सकते हैं और हमारे लिए कोई ना रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमको छूटना है तो किसी के लिए प्रेजुडाइज मत करो। वो बेनिफिट ऑफ डाउट, उस टाइम उसने ऐसा किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ही करेगा। लेकिन हम बोलते मैं जानती हूँ वो सुधरने वाली ही नहीं है, उनको चाहे कितना भी कहो ना, वो मानने पहले से ही मान लेते हैं कि वो मानने वाली नहीं है। ऐसे करने से आज तक हम जितने जितने जीवों के साथ, मतलब अनंत जीवों के साथ जुड़ के आए हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में क्या है? गांठ, ग्रंथि, पूर्वग्रह की गांठ है। तो जैसे ही वो जीव हमारे सामने आता है, जो भी जन्म में,
उसके लिए हमारे मन में वैसे प्रतिभाव आया करते हैं। तो प्रतिभाव रोकने के लिए क्या करना, जहाँ से हम आलोचना करना बंद करेंगे दूसरों की और अपनी शुरू करेंगे कि एक भी काम ये संसार का ऐसा नहीं है जो मैंने किया न हो, ये संसार का एक भी पाप ऐसा नहीं है जो हमने न किया हो। ये सोचते सोचते आंखों से आंसू बहेंगे कि परमात्मा मैं आज उनके ऊपर उंगली उठाती हूँ, इनकी ओर देखती हूँ, लेकिन ऐसी अवस्था से भी कई गुना ज़्यादा पाप मैंने हर जन्म में किए हैं। तो इसको आलोचना बोलते हैं कि देखना, पूर्वों के अपने अपराधों की ओर गौर से देखना, उसके बारे में सोचना। निंदा, ये सोचने के बाद मेरे किए हुए अपराधों की मैं निंदा करता कि मेरे से ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा सोच लेती हूँ दूसरों के बारे में, मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं और मेरी गलतियाँ के ओर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। और गर्हा, घृणा करना, किसकी घृणा करना, अपने ही अपराधों की, कि मेरे से ऐसा काम हो गया। ये किसने की थी, परमात्मा ने बताया है कि विश्वभूति जी, जो भगवान महावीर का ही भाव है। भगवान ने अपनी ही किताब खोल दी है। भगवान महावीर ने 27 से 27 भाव हमारे सामने खोल के रख दिए कि भाई मैं कहाँ कहाँ कैसे गिरा हूँ, कैसे उठा हूँ, फिर कैसे गिरा हूँ, तो आप भी सावधान रहो। तो उसने बताया कि महाविद्य क्षेत्र 500 धनुष की काया और मुनि मुद्रा, कौन सी मुद्रा, मुनि मुद्रा, एक हाथ में क्या होगा, अगर दिगंबर नहीं होते तो रजोरण वगैरह होगा, पात्र, और मुनि विश्वभूति दूसरे हाथ में जब गाय को उठाई होगी और क्या किया होगा, उछाला होगा, उसने घुमाया होगा और गाय को छोड़ी होगी। उसी वक्त गाय जाके न जाने धरती पे कैसे टकराई होगी, चूर चूर हो गई होगी, तब भी उसके मन में पछतावा नहीं हुआ था कि मैंने एक वचन सुन के, एक वचन सुना कि आपकी ताकत किधर चली गई। आप तो पहले एक मुट्ठी मार के पेड़ को धरती में डाल सकते थे, इतने ताकतवर, अभी एक गाय के धक्के से गिर गए। ये कौन बोला था, विश्वभूति के भाई की पत्नी ने, भाभी ने ऐसे कटाक्ष किया था। भगवान महावीर बोलते मेरी आत्मा उस वक्त अहम में आ गई। क्या आ गया, ईगो आ गया। अरे मैं इतना बलवान आज भी हूँ, तू क्या समझती है अपने आप में, आज भी मैं चाहूँ तो देख। और गाय को उठाया, उठा के घुमाया और छोड़ दिया। उसी वक्त कौन सा कर्म बंधा उसका, फिर सम्यक चला गया क्योंकि मोह भाव बढ़ गया। और उसी वक्त उसने प्रायश्चित नहीं किया और ऊपर से ये सोचा कि अगर मेरा तप संयम का कोई फल हो तो मैं इतना बलवान बनूं कि आगे जाके मुझे कोई झुका न पाए। क्या मांग लिया तप के बदले में, बल मांग लिया, बल मांग लिया। वो तो बाय प्रोडक्ट में मिलने वाला था। बाहुबली जी को बल कैसे मिला, तप संयम से ही मिला, लेकिन मांगा हुआ नहीं था तो छोड़ भी सकते हैं उनको। बाहुबली जी इतने बलवान हुए तो भी मुष्टि से क्या कर लिया, टूच कर लिया, क्योंकि मांगा हुआ बल नहीं था। और वासुदेव क्या होते हैं, मांगा हुआ नियाण कड्डा निदान कर लेते हैं, इच्छा का सौदा कर लेते हैं। हमने भी कई बार सौदे किए, भगवान ये मुसीबत से टाल दे मैं ये कर लूँगा, ये मुसीबत से टाल दे मैं ये कर लूँगा। अरे नौकार वाली भी की है तो मांगने के लिए की है। तकलीफ आई तो नौकार गिनने बेच गए। अगर रोज़ गिना होता तो तकलीफ आने के बजाय पहले से ही तकलीफ अपने आप छूट जाती या तो माइल्ड हो जाती। तो ज्ञानी कहते हैं कि धर्म को ऐसे करे कि आत्मा के ऊपर कर्म जो है वो अपने आप तप के रूप में निर्जरित हो जाए। तो उसने उसी वक्त मांगा तो क्या बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए। भगवान मांगने से मिला बल, लेकिन क्या बन गए, वासुदेव बन गए। अपराजित होते हैं वासुदेव, क्या होते हैं, इनको कोई हरा नहीं सकते। ऐसा बल मांगा, ऐसी ताकत मांगी और बन भी गए। वहाँ से कहाँ चले गए, 7वीं नरक में महावीर की आत्मा को जाना पड़ा। इसकी आलोचना करो कि भगवान मैंने भी मेरे तप संयम से कुछ मांगा हो, मेरी आत्मा को ऐसे जुनून में लाया हूँ, मैंने कभी गलती से भी कुछ सोच लिया हो, तो इनकी मैं क्या करता हूँ,
इनका सम्यक ज्ञान गया। तो ज्ञान की हमने विराधना ऐसे हम कर लेते हैं कि हमारी समझदारी चली जाती है। और दर्शन माने श्रद्धा, वो नंद मणियार जिसने वाव बंधाई थी, क्या बंधाया था? कुआ, वाव। वो उपवास में था, औषध में था, गले से पानी सूख गया था और औषध में पानी पिया नहीं जाता। और इतनी प्यास लगी रात को, तो मन में आ गया कि इतने प्रवासी यहाँ से मगध से गुजरते हैं और रास्ते में तो कोई पानी का स्थल नहीं है, सबको प्यास लगती होगी, न जाने उनका क्या हाल होता होगा। तो हम इसके लिए एक वाव बंधाएंगे। क्या सोचा? पुण्य का काम था सलग्य जी। लेकिन उसने कब सोचा? जब पौषध में था, निर्जरा में था, त्याग में था, तप में था, व्रत में था। और उसी वक्त उसने अनुमोदना किसकी की? पानी के वाव की। और दूसरे दिन वाव का काम भी शुरू कर दिया, मगध से राजा से परमिशन लेके बनवा दिया। लेकिन बनाने के बाद ये मेरी वाव है, ये किसने बनाई है? मेरी। ये याद रखना है कि ये हमने किया था सब। अगर आ गया ना मन में कोई भी, तो उनके पुण्य पाप दोनों जुड़ जाते हैं। त्याग और दान में क्या फर्क है? त्याग और दान में क्या फर्क है? दान में देना होता है। क्या होता है? हम देते हैं, हमारा है और हम देते हैं। और त्याग में हमारा नहीं है और हम छोड़ते हैं, हमारा है ही नहीं तो पकड़े क्यों? इतना फर्क है। दान और त्याग को कभी दिमाग में लाना। दान करने से पुण्य बंधेगा, लेकिन पुण्य जुड़ जाएगा अपने साथ, फिर उनसे भी छूटना पड़ेगा। और त्याग करने से क्या होगा? त्याग करने से बंधन छूट जाएंगे। तो हमें त्यागी बनना है, दानी नहीं बनना है। सिर्फ दान करने में कर्तापन है, कर्तापन है ना, मेरा था मैंने छोड़ा। और त्याग में है मेरा है ही नहीं, मैं छोड़ने वाला कौन होता हूँ, मेरा है ही नहीं। ये मोह भाव जो मेरा है उनके प्रति, वो भाव में छोड़ता हूँ। तो उसने ये सोच सोच के कुआं वाव तो बन गई। कई लोगों ने पानी भी पिया, किसी ने आशीर्वाद भी दिए होंगे, लेकिन उसका खुद का क्या हुआ? क्या बन गया? मेंढक बन गया, कुएं में ही पैदा हुआ। क्योंकि मेरा 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 छूटा नहीं। पैसे तो छूटे, वाव भी बंधी, लेकिन कर्तापन नहीं गया। देखा अभी कर्म गति को किसने दी? उनको मेरापन, मेरा भाव। तो इसका ज्ञानी कहते ऐसी दर्शन की विराधना, हमारी श्रद्धा की विराधना हो गई हो, तो इसका हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसका बोलते हैं निंदा अगरहा, आलोचना, निंदा, चारित्र की विराधना। जो चारित्र भाव है, जो व्रत भाव है, श्रावकपन हो या साधुपन हो। देखो हमारे शास्त्र में दो उदाहरण है, एक कुंडरिक और एक पुंडरिक का। कुंडरिक एक भाई है, पुंडरिक उसका दूसरा भाई है। ये सब महाविद्य क्षेत्र वाली बातें हैं। यहाँ की ये यहाँ वाले नहीं थे। महाविद्य क्षेत्र जहाँ साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य में दीक्षित, और उस समय का चौथे आरे का माहौल, फिर भी जिसने 10 साल तक 12 साल तक चारित्र पाला है, ऐसे मुनि पुंडरिक। जब शरीर में रोग पैदा हुए तो शरीर से सहा नहीं गया, और भाई को पता चला, जो पुंडरिक राजा थे, कि अपने भाई बीमार है, साधु बने हुए, मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी वयावच करूं। तो उसने राजवैद्यों को उसके पीछे लगाया कि ये मुनिराज की सेवा करो, वयावच करो, उनको पथ्य आदि सब की पालना मिले, ऐसे रखो। तो उसने पूरा चातुर्मास उनकी सेवा भक्ति की। मुनिराज वापस स्वास्थ्य में आ गए, कुंडरिक मुनि, और शरीर में जोश आ गया, और खाने पीने का अच्छे से जो उनका ध्यान रखा गया था, उनकी वजह से शरीर में प्रमाद आ गया और भोगा शक्ति बढ़ने लगी। और जैसे ही 4 महीना पूरा हुआ, उनको विहार करना चाहिए, लेकिन उसने विहार करने की नहीं सोची। और पुंडरिक को पता चला, वो गए, उनके पास गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपका तंदुरुस्ती वापस आ गया है, आप भगवान के मार्ग में विचरण कर रहे हो, आपका काल पूरा हो गया है, आप अभी जब जाना चाहो जा सकते हो,
में हम आपको खुशी से विदा करेंगे। और वो कुंडरीक जो मोह में फंस गया था, शरीर में प्रमाद में आ गया था, साधुपन का सारे भाव अंदर से ही अंदर पिघल गए थे। बोले तू क्या बोलता है, अभी इतनी सुविधा रहने के बाद मेरे से ये चारित्र का भार संभाला नहीं जाएगा, अभी मैं साधु बन के जाना नहीं चाहता, मैं तो इधर ही रहूँगा। भगवान के शासन के नियमों की उल्लंघना करना ये बड़ा अपराध हो जाएगा और समाज में भी निंदा हो जाएगी, तो अभी क्या करे। बोला तुझे शासन की बहुत चिंता है तो तू बन जा साधु। क्या राजमहल में बैठे बैठे सलाह देता है कि चलो विहार करो, विहार कैसे होता है पता है तुझे, मैं नहीं करूँगा। मन में मोह आ गया तो पुंडरीक सोचता है कि अभी क्या करे क्या करे। वो दोनों भाई थे जुड़वा, दोनों एक समान थे, दिखने में भी समान, उम्र में भी समान, सब में समान। तो उसने तो जीवन भर राज्य पे जीवन बिताया था और उसने साधु बन के जीना। अभी दोनों के भाव बदली हुए। वो सोचता है पुंडरीक कि मैं शासन की लाज रखूँगा, मैं धर्म की लाज रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो उनका वेश जो है साधु का वो मैं स्वीकार कर लूँ और इनको बिठा दूँ राज्य पे, किसी को पता नहीं चलेगा कि दो भाई बदली हो गए हैं। और कुंडरीक तो खुशी से तैयार हो गया क्योंकि उनको तो भोग भोगना ही था, तो उनको राजा बना दिया और खुद ने संयम का मार्ग पसंद कर लिया। दोनों की आयु सिर्फ 2.5 दिन की थी। कितनी? 2.5 दिन की, 2 दिन और आधा दिन। और उसने 2.5 दिन में खाना पीना भोगना इतना किया इतना किया इतना किया, और बड़ी आसक्ति से, बड़ी ग्रुद्धि से कि उनकी शरीर की ताकत उनको सह नहीं पाई। साधु बन के जिया था तो उनके लिए ये चीज़ काम की नहीं थी, लेकिन इतनी आसक्ति थी कि 2.5 दिन में तो उनका शरीर में फिर रोग उमड़ आए और 2.5 दिन में उनका काल धर्म हो गया। 2 दिवस में कुंडरीक मरण पाम्या। पहली बाजू पुंडरीक, उसकी आयु भी 2.5 दिन चली। वो उसने इतना कठोर जीवन कभी नहीं किया था, तो 2.5 दिन में उसको भी संथारा करने का मौका आ गया, तो वो संथारा के साथ मरा और वो आसक्ति से साथ मरा। 2.5 दिन में एक गया 7वीं नरक में और एक बन गया वैमानिक देव, वहाँ से एकावतारी बन के मोक्ष जाएगा। लेकिन कहने की बात यह है कि 2.5 दिन में क्या भोगा होगा, 2.5 दिन में क्या किया होगा उसने। लेकिन चारित्र की क्या कर दी उसने, भावना को ही खत्म कर दिया, त्याग भाव को ही छोड़ दिया। और उसने उसकी 2.5 दिन में कितनी आराधना कर ली होगी, लेकिन अंदर से स्वीकार कर लिया कि जीवन तो यहीं सही है, इसी रास्ते से ही मोक्ष जा सकते हैं। तो इसकी आलोचना अगर हम नहीं करते, वो पुंडरीक कैसे गए ऊपर की पूरे जीवन काल की उसने क्या कर ली, आलोचना निंदा ग्रह कर ली कि अरे इतना अच्छा साधुपन था और मैं जीवन भर संसार में रहा, इतनी आलोचना करके पूरे के पूरे पाप धो गए दिए कि एक अवतारी बन गया। और उसने क्या नहीं किया, 2.5 दिन की भी आलोचना नहीं की और वो सीधा 7वें नरक में चला गया। तो परमात्मा में कहते हैं ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की हमसे भी कोई भावनात्मक क्रिया से तो करते ही है, लेकिन भावों में भी ऐसी विराधना की गई हो तो उनका क्या करना चाहिए, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। वो संवत्सरी के दिन जब हम क्षमापना करते हैं तो उसके पहले ये आलोचना निंदा ग्रह जो हम वंदितों का गुजराती में ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो बोलते हैं ना, वो आलोचना के रूप में है कि हमसे एक हो गया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये महावीर के मार्ग में ये आलोचना का भी इतना महत्व है कि एक एक जीव आलोचना करते करते मोक्ष में चले गए हैं। क्या करते करते चले गए हैं, मोक्ष में चले गए हैं। तो ये आलोचना निंदा ग्रह ये भी भगवान ने एक आलोचना एक निंदा या एक ग्रह अंदर से की जाए तो वो भी मोक्ष का मार्ग बन सकती है। और इसके बाद आता है 24 संथो जो पाठ है अपना सामायिक 8वां बोले वो सामायिक का है। वो सामायिक क्या चीज़ है, क्या है सामायिक? 2 घड़ी बैठ जाना, सामायिक 2 घड़ी बैठने से बन जाती है।
ये 2 घड़ी की ऐसी ट्रेनिंग है, ये 2 घड़ी की ऐसी साधना है कि जो जीवन में हमें सिर्फ 2 बार करनी पड़ती है। एक बार सम्यक ज्ञान पाने से पहले और एक बार केवली बनने से पहले। 2 घड़ी अगर हम आत्मभाव में टिक गए तो उसी भाव में एक स्पीड ब्रेकर है किसका, ये संसार में हमारी पाप की गाड़ी जो दौड़ती है ना 2400 घंटों, इसका स्पीड ब्रेकर है सामायिक। हम सुबह से उठ के 18 पाप के पीछे लगे हैं, छकाई के जीवों की विराधना के पीछे लगे हैं, सांसारिक भौतिक जीवन के पीछे लगे हैं, भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये बच्चे को लिया, उठाया, छोड़ के गए, आके गए, लेके गए, एक किया, काम पे गए, और कितना भी लंबा हो जॉब पे बोलते कोई कि अभी आजकल तो उसको 1 घंटे का ड्राइव हो जाता है, रोज जाते हैं जॉब पे, रोज जाना पड़ता है, और देरासर कितना लंबा होता है, उसमें सब गिनती लगती है कितना लंबा है, ये है वो है। तो ज्ञानी कहते ये संसार की ओर मुड़ती हुई हमारी भावधारा को रोकने के लिए 2 घड़ी का स्पीड ब्रेकर लगाओ। क्या लगाओ? अगर इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं आया ना तो वो गति न जाने कहाँ से कहाँ टकरा देगी हमारी जीवन को। अगर एक ऐसा मौका नहीं मिलता तो ज्ञानी कहते हैं कि हम भटक जाते। और ये सामायिक किसने की है? पुण्य श्रावक ने भी की ना। उनकी क्या वैल्यू थी, कितनी कीमत थी? मगध नरेश क्या चुकाने आए थे शैलेश भाई, उसके बदले में क्या देने को तैयार थे? हाँ, श्रेणिक महाराजा मगध नरेश, वो उसके बदले में क्या दे सकते थे? बोले मैं पूरा मगध का राज्य दे सकता हूँ। वो तभी तो पुनिया को लगा कि ये सामयिक को भी वैल्यू है। वो बोला मुझे तो पता नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी कीमत है, फिर भी नहीं दे सकता हूँ। क्या बोला? फिर भी नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे हृदय में जो सर्व जीवों के प्रति जो कल्याण की भावना हो, मेरी करुणा से हृदय मेरा जो द्रवित हुआ हो, मैंने जो व्रत प्रत्याख्यान किए हो, 84 लाख जीवाजोनी के जीवों को जो अभय दान दिया हो, उसका बल वो तेरे में कैसे कन्वर्ट कर दूँ? ये सामयिक क्या है? अगली बार भी बताया था, हर बार बताऊं कि सामायिक न सिर्फ एक अनुष्ठान है, सामायिक न सिर्फ एक क्रिया है, सामायिक न सिर्फ एक व्यवहार है, सामायिक न सिर्फ एक 6 आवश्यक का एक आवश्यक है, सामायिक पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ साधना है। ये जैन शासन का जितना भी अनुष्ठान है न, वो क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर्स है। क्या है? जीवन में कभी क्राइसिस आई तो कैसे करेंगे? हम मौन क्यों रखते हैं? मौन क्यों रखते हैं? वायुकाय के जीव को बचाने के लिए। सिर्फ इतना नहीं है, जीवन में कभी जीप चली गई, जबरदस्ती भी मुख को बंद रखना पड़ा, तो हम कैसे उस टाइम कैसे समय निकालेंगे? क्या करेंगे? जीवन में कभी भी समस्या आ सकती है। तो ज्ञानी कहते अगर 2 घड़ी की साधना मौन रख के की होती तो गुस्से में आने के समय हम मूंगा रह सकते, और कोई एक गुस्सा करेगा उस वक्त हमें मौन रखनी है, तो मौन की साधना हमें कितनी काम आ जाती। तो कोई भी चीज़ हो, जो भी हम कर लेते हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर्स बन जाती है। तो सामायिक में सामायिक करना अच्छा है कि सेवा करनी अच्छी है? क्या कर ऐसा लगिए जी? 2 घड़ी का टाइम मिलता है, सिर्फ 2 घड़ी का, तो उस टाइम किसी हॉस्पिटल में जाके सेवा करे, किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाए, कोई सोशल वर्क करने के लिए कोई ओल्ड हाउस में जाए, क्या करे कि सामायिक करे? दोनों समान है? समान नहीं तो अगर 4 घड़ी है तो बराबर है, समझो कि 2 घड़ी ये करो, 2 घड़ी। अच्छा, अगर आपको 1 रुपये के बदले में इधर एक हीरा मिलता हो, इधर एक सोना मिलता हो, इधर एक चांदी मिलती हो और इधर एक लोहा मिलता हो, तो आप 1 रुपये से क्या खरीदोगे? आपके पास एक हीरा, 1 ही रुपया है और 1 ही रुपया आपको मिला हुआ है। तो हमारे पास ज़िंदगी में हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना निकालते हैं? 58 मिनट आपकी, 58 मिनट पाप की
2 मिनट आपकी, पूरे दिन में 58 मिनट हर घंटे की पाप की दे दी, 2 मिनट आपकी आत्मा के लिए निकाले तो 24 घंटों से मिनट कितनी होती है? 48। जब कोई पानी निकालते हैं ना कुएं से, तो उसमें पानी की बकेट और रस्सी दोनों पूरी डाल देते हैं, लेकिन हाथ में कितनी होनी चाहिए? एक मुट्ठी में आए उतनी। अगर मुट्ठी से वो छोड़ दिया तो बकेट भी गई, रस्सी भी गई, पानी भी नहीं मिला। तो हमारी ज़िंदगी में 24 घंटों की जो ये रस्सी है ना, उनका एक छोर पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो समझो 2400 घंटे गए। और वो ये भाव अगर नहीं आए ना हम में, और 2 घड़ी की सामयिक नहीं की, और पाप की ओर भागती हुई जीवन की जो गति है, वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी और कहाँ से कहाँ टकरा देगी। थोड़ा सोचो, भगवान महावीर ने सामयिक को इतना जोर क्यों दिया? अरे पुण्य श्रावक की सामयिक का दृष्टांत आगम में क्यों आया? क्या उनको सामयिक मंडल चलाना था? हाँ, चलाना पड़ेगा आपको। तो अभी ये बनाया है ना, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान की आज्ञा का सम्यक पराक्रम करना पड़ेगा। 6 आवश्यक को रोज करना पड़ेगा। आपने हम लोग है ना, सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, है ना? आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं। स्वामी वात्सल्य कर लो और घुमाओ सब बार, तब जाके सब जुड़ जाएंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी, भगवान के शासन के सुकान को पूरा का पूरा आगे बढ़ाना है। सिर्फ 2 बात को आगे बढ़ाए और बाकी की हर चीज़ को पीछे लगा दे, ये चल सकता है क्या? कई बार मैंने बताया है कि एक रानी की बात आपको याद भी आ जाएगी कि एक राजा 4 रानी। अभी तो किसको तकलीफ होगी कि 4 रानी क्यों? दीदी को लगेगी ज़्यादा। तो अभी एक समय था, उनकी अनेक वजह हो सकती है। तो राजा के हाथ से किसी एक को मृत्युदंड मिला, और मृत्युदंड पाया हुआ जो कैदी था, उनको अंतिम इच्छा पूरी करने का रानियों ने मांगा। वो रानियों ने सोचा कि मरने वाले की कोई इच्छा हो तो उनको कम से कम हम थोड़ी पलों के लिए खुशी दे सकते हैं। तो पहली रानी ऐसा मानने वाली थी, सालग्या जी, कि हर एक को खाना पीना ठीक से मिलना चाहिए, और कुछ मिले न मिले, वो भी एक सेवा है कि लोगों को भोजन प्रोवाइड करना, क्योंकि हर एक को खाना चाहिए। तो उसने, पहली रानी ने वो कैदी को चौथे दिन, जिनको फांसी लगनी थी, ऐसे कैदी को घर में आमंत्रित किया राजमहल में कि तुझे मन भर के जो भी खाना है, ये मेरे राज रसोड़े से तेरे लिए हर चीज़ बन जाएगी। और पूरा का पूरा, हम बोलते थे ना 32 प्रकार के भोजन, वो सबको उनके सामने रख दिया। अभी तो रिसेप्शनों में 32 नहीं 132 होते हैं, और हम वो डिश लेके घूमते हैं, पहले से लेके लास्ट तक। और द्रव्य कितने रखते हैं? तो बोलते आज थोड़ा बाहर के लिए छुट्टी है, घर में तो हम 5 ही खाते हैं, और इधर तो 5 भी बहुत हो जाता है ना, हाथ से बनाना पड़ता है। लेकिन वो इतना सामग्री होने पर भी कैदी को मज़ा कितना आएगा? खाया, भूख भी लगी थी, और जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है, लेकिन हृदय से खुशी नहीं मिली उनको। और दूसरी रानी मानती थी कि उनको अच्छे से अच्छे कपड़े, गहने, जो भी साज श्रृंगार, उनको कोई ना कोई बार तो ज़िंदगी में मिलने चाहिए। अगर अभी तो ये मरने वाला है, तो उनके अंदर में कोई इच्छा हो तो उसको पूरा कर दो। तो उसने वो सब सामग्री रखी थी। तो उसका मन चाहा कोई एक वस्त्र पहन भी लिया, लेकिन अंदर से खुश होगा छाया? नहीं होगा ना। और तीसरी रानी ने उनके लिए हर प्रकार की सुविधा, 5 इंद्रियों के विषय, नाच गान तान सब कुछ, नृत्यांगना सब उसको दे दी, ये सब तेरा, तुझा 5 इंद्रियों का विषय का तू भोग कर सकता है। दूसरे दिन मरना था, तो उसका मन कितना लगा होगा। और चौथी रानी के पास आया, घर में कुछ नहीं था, न खाना न पीना, न गाना न बजाना, न कुछ सामग्री, सिर्फ एक अंधेरा कोना था। उधर लेके गई और उसने बोला कि तुझे भाग जाना है,
मेरे पास एक टनल है। अगाऊ पहले के ज़माने में राजा टनल रखते थे, रानियों की सियल की रक्षा के लिए कभी मौका आए तो वहाँ से उसको भेज सकते थे। और रानियों के माता पिता भी बेटी की सेफ्टी के लिए गुप्त रूप से उनके महल तक भी टनल बना देते थे कभी, कि उनको अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ गई तो बेटी वहाँ से आ सकती है। किसी को पता नहीं होता, बाप ने अगर बनाई है तो राजा को भी पता नहीं होता। ऐसी गुप्त टनल होती थी। तो वो टनल उसको दिखाई कि ये राज से बाहर निकल जाएगी, तू भागना शुरू कर तो तू शाम तक दूसरे राज की हद में पहुंच जाएगा। फिर वो खड़ा रहेगा एक पल के लिए, क्या करेगा? भाग जाएगा। वो ऐसा भागा कि मोड़ के नहीं देखा। सामने सब कुछ पड़ी थी, बाकी के तीनों हॉल भरे थे, जो इसमें खाना पीना था, एक में कपड़े थे, एक में साज श्रृंगार था, ये सब था, लेकिन उसने झाँक के नहीं देखा। तो समझ लो जीव को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? खाना पीना, ये सब चीज़ है कि जिंदगी प्यारी है। तो आप जिधर भी 2 घड़ी में सेवा करने जाते हो, वहाँ क्या प्रोवाइड करते हो? कहीं जाओ खाना पीना प्रोवाइड कर दो, कहीं जाओ शरीर की सुविधा प्रोवाइड कर दो, कहीं जाओ उनका मनोरंजन कर लो, लेकिन 2 घड़ी की सामायिक में 14 राजलोक के हर जीवों को आप अभय प्रदान करते हो। जिंदा रहने का उनको प्रॉमिस करते हो कि मेरी ओर से न मन से, न वचन से, न काया से कोई भी किसी प्रकार की हानि मेरी ओर से नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी सेवा है कि नहीं? जगत के जीवों को जो सबसे प्यारा है वो आप दो तो वो सबसे ऊंचा हो जाता है कि नहीं? ये जिन शासन की जोड़ जगत में नहीं मिलेगी। सालगिया जी, आप हमें दुनिया को ये बताना है कि ये निष्क्रियता नहीं है, ये निवृत्ति नहीं है, ये आंतरिक प्रवृत्ति है। क्या है? वो सामायिक में ऐसा भाव आना चाहिए कि मेरे चलने से, मेरे उठने से, मेरे घूमने से, मेरे सोचने से, मेरे विचारों से कितने जीवों का ये पूरा संसार वाइब्रेशन से भरा है। कैसे? ये तरंगों से भरा है और हर तरंग को वैल्यू है। ये नेगेटिविटी क्या है? ये रेडिएशन क्या है? ये सिद्धों का हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम करके क्या पा रहे हैं? हम ये ओरा में क्यों घूमते हैं? भ्रमति में क्यों घूमते हैं? क्या मिलता है उधर? ये पूरा ओरा का जगत है। हमारी ओरा को इतना पवित्रता दो, इतनी निर्दोषता दो कि मैं 2 घड़ी तक न मन से, न वचन से, न काया से, न पाप करूँगा, न कराऊँगा, न करते हुए कि अनुमोदना करूँगा। ये सर्व जीव जगत के मैं आप परमात्मा की साक्षी से ये हाथ जोड़ के प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। क्या सामायिक में प्रतिज्ञा करते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, द्रव्य थकी सावध्य योग सेववाना पचकाण, क्षेत्र थकी आखा लोक प्रमाणे, काળ थकी 2 घड़ी उपरांत न पाड़ू ત્યાં સુધી, भाव थकी 6 कोटि। क्या करूँगा? करेमी बनते सामायं सावजंग जोगम पचकामी। सावध्य योग, मन वचन काया के पापकारी प्रवृत्ति करने वाले मेरे योग को रोकता हूँ। सावजंग जोगम पचकामी, जाव नियम पजवा स्वामी। जब तक मेरा नियम पूरा न हो, 2 घड़ी पूरी न हो। तो इसके लिए कितना बड़ा विधान, कितनी बड़ी ताकत, कितना बड़ा कमिटमेंट और कैसा कन्विंशन चाहिए। ये भावना अगर एक सामयिक में हमने तय कर ली और एक बार ऐसा अभय वचन हमारे मुंह से निकल गया, ज्ञानी कहते हैं अभय दयाणम। क्या बताया भगवान को? अभय देने वाला। उसने पूरी जिंदगी के लिए जो अभयदान दिया है वो अगर हम 2 घड़ी के लिए नहीं कर पाएंगे, कोई जन्म में साधु नहीं बन पाएंगे। जो जन्म भर करना है उनको 2 घड़ी तो करना पड़ेगा कि नहीं? बीज बोना है। ये जन्म में क्या करना है? बीज बोना है। जो भाव आगे जाके जीवन भर के लिए करना है उसकी साधना 2 घड़ी में हो जाती है। ऐसी सामायिक के सामने कोई भी मायना नहीं रखते, कोई भी चीज़। लेकिन हम सामायिक को कैसे कर लेते हैं? ऐसे ही बैठ जाते हैं। लेकिन अंदर की भावना को जगाना है, अंदर के हृदय के भावों को जगत के कल्याण के प्रति मोड़ना है। उसमें हमें ओतप्रोत होना है।
प्राण देना है, हर क्रिया को प्राणवंत बनाना है। प्रतिष्ठा प्राणों की ना प्रतिमा जी में, अभी अपनी क्रियाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा करो। क्या करना है? अपनी हर क्रिया में प्राण की प्रतिष्ठा करो। नौकर बन के काम मत करो। कोई दुकान चलाता है तो एक मालिक होता है, दूसरा उसका नौकर होता है। नौकर शाम के टाइम घड़ी में देखेगा कि कैसे 5 बजे और कैसे मैं इधर से ताला लगा के निकल जाऊं, और चाहे कैसा भी आए ना कस्टमर, तो भी वो सोचेगा क्यों आया, अभी मेरा जाने का टाइम हो गया है। और मालिक क्या सोचेगा? अरे बेचता हूँ मैं, क्या है उसमें, कमाई होने वाली है। तो 2 घड़ी हुई या नहीं घड़ी में देखने वाला नौकर होता है। क्या होता है? सामयिक की। और घड़ी में देखा तो समझना कि हम नौकरी करते हैं, और पार ना हुआ और घड़ी में देखा नौकर से आ गई या पोर से, तो समझना कि हम नौकर बन के करते हैं। अरे बाहर निकलने में तकलीफ होती है। सामयिक करने वाले को पालने के वक्त आंसू आते हैं। अरे परमात्मा, मैं ये पापों के काम में जा रहा हूँ। जैसे माँ कैसा भी काम करती हो ना, अगर बच्चा किधर सोया पड़ा है तो माँ का ध्यान किधर रहेगा? बच्चे में रहेगा ना। उसी तरह संसार में रहते हुए श्रावक का ध्यान आत्मा में रहेगा। मौका कब मिले और 2 घड़ी के लिए छूट जाऊं, ये पापों की दुनिया से 2 घड़ी के लिए मैं छूट जाऊं। और उन सामयिक पालते वक्त खुशी होती है कि बांधते वक्त खुशी होती है? पर्यूषण आते वक्त खुशी होती है कि पूरा होते वक्त खुशी होती है कि 8 दिन के बंधन गए। अभी तो बच्चों को लेके मैकडोनाल्ड चलो, टाको बेल चलो, जबरदस्ती 8 दिन हमने अपने मन को बांधा, तो फिर जन्म भर कैसे बांधेंगे? संसार कैसे छूटेगा? मोह कैसे टूटेगा? ये सामायिक एक क्रिया नहीं है, मालिक बन के करना है। कभी एक सेठ मालिक के पास खेतीबाड़ी करने वाला था, किसान था, तो उनके पास एक आदमी कई सालों से काम करता था, बड़े प्रामाणिकता से उसने काम किया था। तो वो खेतीबाड़ी के मालिक जमींदार उनके ऊपर खुश हो गए। बोला, अभी तूने मेरी 25-30 साल नौकरी की है, अभी एक छोटा सा खेत मैं तुझे दे देता हूँ, कल से ये खेत तेरा और सब खेती की कमाई भी तेरी, तू अपना खेत खेर लेना। वो बोला कि मैं खेत तो ले जाऊँ, लेकिन उसमें जोतने के लिए बैल भी चाहिए, हल भी चाहिए, वो सब तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास तो 20 बैलों की जोड़ी है, तू बैल ले जाना उसमें से और खेती कर लेना। तो बोला, ऐसा करूँ, कल मैं देख के जाऊँ, कल बैल लेने को आऊँगा, लेकिन बैल जरा देख के लेके जाऊँगा। तो कि तुझे देखने की क्या ज़रूरत है, तू तो 25 साल से नौकरी करता है, 2500 बैल की जोड़ी तूने चलाई है, तो कोई भी लेके जा। तो क्या बोला था सालगिया जी? वो तो मैंने नौकर बन के चलाए थे बैल को, अभी मालिक बन के देखूंगा। क्या है? नौकर बन के देखना नहीं था कि बैल कैसे चलता है, चला तो चला, जितना खेती किया तो किया, आज तो मेरा बनने वाला है, तो मुझे देखना है कि कौन सा बैल अच्छे से अच्छा है। आज तक हमने धर्मानुष्ठान नौकर बन के किया है, कभी मालिक बन के करो। मेरी आत्मा के समीप मुड़ता हूँ, मेरी आत्मा की ओर जाता हूँ। एक एक तत्व में लोगस क्या है? ये संसार के हर मंत्रों से सबसे बड़ा मंत्र जो है, ज्ञानी कहते हैं कि हम एक देवी देवताओं की मिन्नत करके भी ऐसा सोचते हैं कि उनकी कृपा मिल जाएगी, तो इसमें तो 2400 तीर्थंकर और 2400 तीर्थंकर के असंख्य देवी देवताएं, 24 संपी जीनवरा, 24 तो ये, और अपी लगा के क्या बताया, आज तक हुई अनंत 24 तो अनंत 24 के अनंत तीर्थंकर और उनकी अनंत देवी देवियाँ, ये सबकी स्तुति एक साथ में हो जाती है। एक एक अधिष्ठायी का एक एक शब्द के ऊपर है। एक बार ज्ञानी कहते हैं, लोगस उद्योग अरे धम्म तीर्थ अरे जीणे, कौन करेगा उद्योग? भगवान को पूछा गया था केशी गौतम के संवाद में, उत्तराधीन जी आगम में पूछा गया था, को करी सही उज्जोयम, केशी स्वामी पूछते हैं गौतम को, तो बोलते हैं लोगस उद्योग अरे, ये लोग को उद्योग करने वाले परमात्मा का ज्ञान इस पूरे संसार को क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। ऐसे लोगस जिसको जो गौतम गणधर से रचा गया है।
हमारे पास मंत्र के रूप में है। तो हम अगर एक मंत्र को आरुग्य बोहिलाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु, क्या मांगते हैं? अनंत आरोग्य। आरोग्य माने शरीर का स्वास्थ्य सिर्फ नहीं, आरोग्यमय दशा जो स्वस्थ, स्वस्थ माने स्व में टिका हुआ, स्व में खड़ा हुआ, स्वस्थ स्व में जो टिका है वो पूर्ण तंदुरुस्ती है। क्या है? स्वास्थ्य का मतलब शरीर की तंदुरुस्ती सिर्फ नहीं है। जैन आगम में हर एक शब्द के पीछे आत्मा को जोड़ा गया है। तो ऐसे आरोग्य को बोहिलाभम, बोधि का बीज, जो सम्यक्त्व का बीज माना जाता है, ये मनुष्य भव में ही डाला जाता है। समाही, समाधि, वरम उत्तमम, उत्तम रूप में जो वरदान मिलता है उनका दान करो। क्या मांगा हमने? ये संसार की कोई चीज़ नहीं मांगी, लेकिन अंदर संसार से ऊपर उठने वाली पूरी मांग आ गई। और नमोथुणम क्या है? थवथुई मंगल, इसमें बताया है। ये थवथुई मंगल भी 14वां सम्यक पराक्रम है। ये नमोथुणम है जो वीरासन है। हम जो नमोथुणा जिसमें बोलते हैं ना, वो आसन को क्या कहा जाता है? वीरासन। वीर कैसे बैठता है? उठना पड़े तो उसी मोमेंट खड़ा हो सकता है। और नमोथुणम की मुद्रा ऐसी है, शेर कैसे बैठता है? वो कभी लेट के नहीं बैठता, वो ऐसे बैठा है कि जैसे ही उठना पड़ा तो उठ के भाग सकते। उसी तरह ये वीर की मुद्रा है। कभी भय लगता हो ना तो वीरासन की मुद्रा में बैठ जाना, नमोथुणम बोलने लगना। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, क्या शब्द है उनके। देखो, कोई जंगल में भूला हुआ मुसाफिर है, वो रास्ता भूल गया है, किसी ने पकड़ लिया है और आँखों पे पट्टी बांध दी है और सब सामान लूट लिया है, वो घबरा गया है और सबको पुकारता है। उस समय अगर कोई आए और उनका हाथ पकड़े तो उनको कैसा आश्वासन मिलेगा? खुश हो जाएगा ना। तो इसमें क्या है? चक्षु दयाणम। भगवान को क्या बताया कि मैं तो संसार के रास्ते में उलझ गया हूँ, आप तो हमें चक्षु देने वाले हो। नमोथुणम अरिहंताणम भगवंताणम चक्षुदयाणम शरणदयाणम। आपने मेरे चक्षु दिए, सबसे पहले आपने पुकारा कि मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर। फिर आपने मेरी पट्टी खोली, चक्षु दिए। मग दयाणम, मार्ग दिखाया, ये गलत रास्ते पे था, सीधा रास्ते पे चल। शरण दयाणम, आश्वासन दिया कि मेरे पास शरण में हो तुम, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जीव दयाणम, धम्म दयाणम, धर्म बताया, तेरा कर्तव्य क्या बनता है, अकेला क्यों निकला, बगैर रास्ता पूछे क्यों निकला, उलझ गया हो, अभी सही रास्ते पे चलो। ये पूरी आत्मा की कहानी है। इसमें एक एक शब्द जो है ना, उसमें आत्मा की कहानी बताई गई है। तो ऐसे स्तोत्र जो आगम पाठ के रूप में हमारे सामने मौजूद है, इनका पाठ करने की बजाय नवकार मंत्र विनाश की दो अन्य मंत्रो जाणीने कुशास्त्रना वाक्यो वडे हणी આગમોની વાણીને કૂવો દીવો લઈ કૂવે પડ્યો ધિક્કાર છે મુજને। હવે ક્યાં કર્યું આપણે? કૂવો દીવો લઈ કૂવે પડ્યા। આ મનુષ્ય બહુ મળ્યો, જેને શાસન મળ્યું, વિતરાગની વાણી મળી, પણ આપણે તો આગમ પાઠોને આપણા જે 6 આવશ્યક બતાવ્યા છે એનો કોઈ મહિમા કર્યો નહીં, મનુષ્યની જિંદગી આમનામ પૂરી થઈ જશે। આજે નમો બોલ્યા ન જાણે, આ નમો બોલવા માટે કેટલો કાળ ચાલ્યો જાય, નિગોદમાં ચાલ્યા ગયા કે નર્કમાં ચાલ્યા ગયા, અસંખ્યાતા કાળ સુધી આ નમો બોલવાનો હક લૂંટાવી ન દેવો હોય તો જીનવાણીનો મહિમા કરીએ, પરમાત્માના સૂત્રોનો મહિમા કરીએ, અસમ્યક પરાક્રમના માર્ગે આગળ વધીએ, આવા મિથ્યા પરાક્રમ છોડીએ। અને જ્ઞાની આપણને કહે છે કે આમાં પ્રાયશ્ચિત, ક્ષમાપના, સજ્જાઈ, વાયણા, પૂછણા, પર્યટણા, અણુપેહા, ધમ્મકહા। સ્વાધ્યાયના 5 રૂપ, વાંચવું, પૂછવું, પર્યટણા શીખેલું સંભાળવું, અણુપેહા શીખેલા ઉપર ચિંતન કરવું, અને ધમ્મકહા જે સમજ્યા એનો જગતમાં પ્રવાહ વહેતો કરવો। એક એક વસ્તુ કરતાં કરતાં અનંત જીવાઓ, બહવે જીવા સિજંતી બુજંતી મુચંતી પરનિવાયંતી સવ દુખાણમ અંત કરતી। પરમાત્મા સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં જીવ મોક્ષ પામે? હા ગૌતમ, સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં અનંત જીવો
મોક્ષને પામ્યા છે. તો મારા ને તમારા જીવનમાં આવું સમ્યક પરાક્રમ કરવાને માટે આવી અનેરી તક મળી છે. પહેલાં આપણી પાસે સાધન મર્યાદિત હતું, હવે સાધન કેવું બન્યું છે? પૂર્ણ અનુકૂળ મળ્યું છે. આજે આપણી પાસે સારામાં સારી લાઇબ્રેરી હોય, આપણે ભેગા થઈને એક એક વ્યક્તિ પોતાનો અભ્યાસ કરે, કરાવે અને સૌનો સહયોગ મેળવીને શું કરે? વિઝનને ક્લિયર કરે. આ પામી જવાનો ભવ છે, ખોઈ નાખવાનો ભવ નથી. જે મળ્યું છે એ સાચવવાનો ભવ છે. 2,500 વર્ષ સુધી, 2,500 વર્ષ સુધી આપણા પૂર્વજોએ આ પરંપરાનો વારસો આપણા સુધી પહોંચાડ્યો છે અને આપણે તદ્દન નામુકર જાશું? આપણે કાંઈ જ નહીં કરીએ? આપણી પાસે આટલો મોટો વારસો છે. અભ્યાસ વધારીએ, દાન, શીલ, તપ અને ભાવ, જ્ઞાન અને ક્રિયા, આ બધાનો સમન્વય કરી અને આત્માના કલ્યાણના માર્ગમાં જોડાઈએ. આવી ભાવના સાથે પરમાત્માની આ વાણીને આપની સાથે શેર કરતા, એટલે કે સાથે સ્વાધ્યાય કરતા, મારી પોતાની મંદમતી કે અલ્પ બુદ્ધિથી, કદાચ જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી ઓછું અધિક કે વિપરીત કાંઈ પણ કહેવાયું હોય તો અરિહંત અનંત સિદ્ધ કેવડી ભગવંત ગુરુદેવો આત્માની સાક્ષીએ, આપ સૌની સાક્ષીએ તસ્મિચ્છામિ દુક્કડમ. ચાલો. સર્વમંગલમાંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો ભગવાન મહાવીર સ્વામી કી, જૈન શાસન દેવ કી, સદગુરુ દેવ કી. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.